Hello everyone. Good afternoon. Hi, this is Sharda. I'm going to be your instructor for this course. Okay. A quick round of confirmation. If you can hear me loud and clear, everyone, please send me yes in the chat window. There is a question window you can see over your screen. There is a question window available. Like this is a class in which we will be communicating through. This is only the voice medium of voice communication. So kindly just send yes in the question window. I got some confirmations. What about the rest people? Dushyant, am I audible? Divya, am I audible? Or Toshik, Vratika, Subham? Okay, I got some more confirmations. So I think voice is clear, right? Okay, guys, first of all, you people, please introduce yourself, write your name and your college name. Okay, guys, I got some responses. One is the Divya Tamar from Government Women Engineering College, Ajmer, and Subham Sharma from SKIT College, and Surendra Kumar from RIT, Rajasthan Institute of Engineering and Technology, and Tosik Kumawat, also from Rajasthan Institute of Engineering and Technology, and Khushbu Saini from ECB Bikaner, and Nishant Bhatt from JCRC, Tanvi Jain from JCRC, Mahipal from Rajasthan Institute of Engineering and Technology. Okay, guys, some are writing still. So these are the people connected with, and some are also joining to us. So I'll introduce myself. Like I'm, as I already told you, I'm Sharda Chaudhary, and I will be your instructor for this course. I have been 8 years experience in the IT sector, and I have completed my master's from MNIT Jaipur in artificial intelligence machine learning. And about the training part, it is my hobby. I'm providing this for a long time. I have guided lots of students in the last 3 years. Okay, so in the today's session, most of you already know we are here connected for the artificial intelligence, machine learning, and deep learning course, right?
So welcome to all of you to Go Edu Hub Technologies. And what the content we will cover, I'll show you the content about the training and how our modules will be like किस तरह से हम लोग कवर करेंगे इन चीजों को, वो मैं एक बार एक लेआउट आपको बता देती हूँ, ठीक है? Like this is, you can go to the online training and there is the first training, artificial intelligence, machine learning and deep learning. In this you can see the course content, right? So guys, we will start from the Python, very basic, because आप जब कोई भी ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं आपको पहले उसके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, अदरवाइज यू कैन नॉट गो इन द डीप और इन द डेप्थ, यू कैन नॉट रिसर्च ऑन एनीथिंग. So basically you should know basics. So first we start the Python and slowly we will move towards the machine learning. We will see the some data science libraries and we will go through the machine learning, basic concepts of the machine learning and then the different algorithms of machine learning like regression, classification, clustering. अब सबसे पहले आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए मैम, what is actually machine learning, what is the deep learning, what is the artificial intelligence? I'll clear all these doubts, right? And basically don't get confused. Some people are always saying, ma'am, I just want to do the machine learning, I just want to do the deep learning. These three fields are interconnected to each other. Basically, I can say artificial intelligence is a broader domain and the machine learning is a part of it and the deep learning is a part of machine learning. So basically, any of them you are studying, it means you are studying the artificial intelligence, right? आप deep learning पढ़ रहे हैं, इसका मतलब है कि आप automatically artificial intelligence पढ़ रहे हैं. And you people heard like what is the why deep learning is so famous nowadays. It is the this is the platform, this is the domain on the boom nowadays in the industry. Even every company want to implement the deep learning or the artificial intelligence. So we should know the latest market trend, how people are working, what is the need of the industry, and how this will help in my career enhancement, what we will be get during the training. I'll show all these things. So basically हम लोग start करेंगे very basic से. I assume कि आप लोगों को कुछ नहीं आता है. Suppose आपको Python पे practice है, आपको machine learning पे थोड़ी बहुत practice है, then आपके लिए revision, जो first 2 units हैं वो आपके लिए revision हो जाएंगी, जिसमें आपको एक एक चीज मैं वेरी बेसिक से क्लियर करूंगी पाइथन में और मशीन लर्निंग में. उसके बाद हम लोग मूव करेंगे डीप लर्निंग पे. इंट्रोडक्शन टू डीप लर्निंग, बेसिकली डीप लर्निंग क्या होता है, न्यूरल नेटवर्क. आप लोग ये बहुत सारे बजवर्ड्स हैं, आपने सुने होंगे, डीएल, न्यूरल नेटवर्क, टेंसरफ्लो, केरास, टीएफलर्न. तो ये सारे एक एक कीवर्ड पे हम काम करेंगे. एक एक वर्ड एक एक फ्रेमवर्क है और उसका एक अपना मीनिंग है. तो हम ये सारी चीजें इस ट्रेनिंग में कवर करेंगे. द fourth module is understanding fundamentals of neural network using TensorFlow. Deep dive into the neural network using TensorFlow. Master deep neural network. Deep neural network basically क्या होता है, जैसे हमारा न्यूरल नेटवर्क काम करता है, हमारा माइंड जैसे वर्क करता है. Guys, I'll request you one thing, this is my request. If you have any question during the session, कोई भी क्वेश्चन आपको आ रहा है जब मैं पढ़ा रही हूँ, आप मीनवाइल टाइप कर सकते हैं क्वेश्चन विंडो में, so that I'll get your question and I'll answer the question. This is the big request to all of you. Kindly write your question in the question window so that I can answer it easily. ओके आपको कैसा भी क्वेश्चन आए आप तुरंत पूछ लेना, उसमें कोई हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए. एंड दिस शुड बी लाइक क्लासरूम. तुम्हें ऐसा फील आना चाहिए कि हम लोग कनेक्टेड हैं and we are carefully listening each and everything so that we will do the things very easily. Okay, and I think सबको दिख रहा होगा क्वेश्चन विंडो, सबको दिख रहा होगा सबकी स्क्रीन पे. मैंने इसीलिए आपसे एक कंफर्मेशन लिया था, एक इंट्रोडक्शन भी इसीलिए लिया था, ताकि आप लोगों को विंडो दिख, आपको ये पता चले कि हम कहाँ टाइप करेंगे, हमें कुछ भी पूछना है तो हम कैसे पूछेंगे, ठीक है ना. एंड
मैं आपको बता रही थी मॉड्यूल 6 लाइक कि हम न्यूरल नेटवर्क पढ़ेंगे। न्यूरल नेटवर्क के अलग-अलग टाइप्स होते हैं। कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क होता है एक आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क होता है। तो इन सबको हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे। केवल थ्योरी पार्ट नहीं, हम पहले एक-एक चीज़ का कांसेप्ट मैं आपको क्लास में करके दिखाऊँगी और फिर आपको कुछ क्वेश्चन्स मिलेंगे। ठीक है? इसी तरह से न्यूरल नेटवर्क का एक टाइप होता है रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क। कंटेंट आप सबने देखा होगा आई सपोज़। Okay, and then the restricted Boltzmann machines, autoencoders, Keras, TF-Learn, and this is very important module, module 12, computer vision. Basically, इसमें हम computer vision, machine learning, sorry, image processing part करेंगे, जो बहुत ही attractive लगता है लोगों को. Actually क्या होता है इसमें सारी चीजें हमको दिखती हैं कि कैसे वो चीजें हो रही हैं. लाइक हम images पे वर्क करते हैं, हम वीडियोज पे वर्क करते हैं, तो उसका आउटपुट ज्यादा इफेक्टिव लगता है. Right? And we will do, this is very important, we will do one hands-on project in this training. This is the 45 days training. Daily I'll take your 2-hour session and इसमें मैं आपको meanwhile project start करा दूंगी. जब अपन CNN पढ़ेंगे उसी टाइम मैं आपको project start करा दूंगी. Like we will be, जब हम module हम 7th मॉड्यूल के अराउंड आएंगे तब मैं आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट करा दूंगी और आपको साथ के साथ उस पर काम करना है मेरे साथ. Okay, so my advice to all of you guys, please follow each and every instruction of the class and do work with me. तो उससे क्या होगा, आपको साथ के साथ प्रैक्टिस होती रहेगी और चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी, कहीं पे भी आपको दिक्कत नहीं आएगी. देखो 2-3 मीडियम होते हैं, ये फर्स्ट टाइम दिस इज हैपनिंग ड्यू टू द कोविड-19. मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफलाइन ट्रेनिंग करते हैं और कुछ ऑनलाइन करते हैं. तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक मिथ रहता है, मैम कैसे पढ़ेंगे हम ऑनलाइन, हमारे समझ में आएगा या नहीं आएगा. तो आपको इस क्लास में सारे डाउट्स पूछ सकते हो, प्लस आपको आफ्टर द क्लास इस क्लास की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी. तो आप उस रिकॉर्डिंग को जाके एक बार रिवाइज कर लोगे तो आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी. मतलब ऐसे लगता है कि एक बार और मुझे रिवाइज करना चाहिए. एंड इफ यू थिंक कि मुझे सारी चीजें क्लियर हैं क्लास के साथ ही, तो आपको जरूरत नहीं है रिकॉर्डिंग देखने की. बट एक बार और रिविजन आप कर लेंगे तो ज्यादा बेटर होगा आपके लिए, आपको एक एक चीज अच्छे से क्लियर हो जाएगी. ठीक है? And one more question, like why we are choosing the Python. I got a question from the Tanvi. Ma'am, why we are using the Python for this course? Basically, Tanvi, Python is a very easy language. I can say I'm just going to start the Python code. मैं अभी Python ही start करने वाली हूँ. But basically, मैं आपको बता देती हूँ क्यों choose करते हैं हम लोग Python. Even across the globe, 90% people using the Python to implementing artificial intelligence, machine learning, deep learning. Why they are using? Because Python is the easiest language on the earth. You can learn this language very easily. बहुत इजी होती है, इसमें आपको ज्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है. इसके सिंटेक्स बहुत इजी होते हैं. जैसे आप इंग्लिश लिख रहे हो, आपको ऐसा फील आएगा. जब आप इस पे काम करोगे तो आपको ऐसे लगेगा कि हम इंग्लिश में काम कर रहे हैं. ओके, लाइक मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे सी में आप कोई प्रोग्राम लिखते हो तो आपको बहुत सारी चीजें, जैसे आपको हेलो वर्ड लिखना है तो आपको 4-5 लाइन का कोड लिखना पड़ता है. पाइथन में आपको इतना सब लिखने की जरूरत नहीं, आप एक लाइन में लिख सकते हैं. सेकेंड थिंग, पाइथन हैव लॉट्स ऑफ लाइब्रेरीज. पाइथन में बहुत सारी लाइब्रेरीज अवेलेबल होती हैं. इन लाइब्रेरीज की हेल्प से हम इजीली बहुत सारे कैलकुलेशंस कर सकते हैं. ठीक है ना? तो ये बहुत इजी होता है इसमें काम करना आपके लिए, इसलिए अपन पाइथन चूज करते हैं. एंड मोस्ट ऑफ द पीपल इसीलिए पाइथन को यूज करते हैं. बाकी लैंग्वेज को पढ़ने में थोड़ा टाइम लगता है और इसमें बहुत फीचर है. ये ओपन सोर्स है, इसको कोई भी कभी भी मतलब आप डाउनलोड करो, यूज करो, आपको कोई लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है. ओके, so now come to our module 0, that is called the Python prerequisite Python. हम लोग अभी देखेंगे getting started with Python data variables. ठीक है? सो वन मोर थिंग, मैं आपको GoEduHub के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ. आप लोग वेबसाइट खोलेंगे goeduhub.com. एक्चुअली आपको क्लास के साथ साथ कुछ रिटन आर्टिकल्स भी मिलेंगे जिनको आप पढ़ोगे तो और चीजें आपकी क्लियर होती जाएंगी. आप goeduhub.com पे जाएंगे, यहाँ पे मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं, फ्री ट्यूटोरियल्स अवेलेबल हैं यहाँ.
फ्री ट्यूटोरियल्स में सबसे पहले मैं मशीन लर्निंग पे जाती हूँ। आप इसी तरह बाकी लैंग्वेज के भी पढ़ सकते हैं, वो आप सेल्फ पढ़ सकते हैं। ये मैं आपको एक-एक चीज़ें एक्सप्लेन करूँगी मशीन लर्निंग एआई वाला। बाकी चीज़ें आप खुद से पढ़ सकते हैं। जैसे आपने अगर जावा प्रोग्रामिंग की लैब क्लास में कर चुके हो, आप तो इसको रिवाइज़ करो, तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी, कुछ चीज़ें छूट जाती हैं। आप कैंपस प्लेसमेंट की तैयारी कर सकते हैं यहाँ से। लिस्ट ऑफ कंपनीज़ है, लॉजिकल रीज़निंग है, क्वांट है, जनरल इंग्लिश है, एप्टीट्यूड है, ये सारी चीज़ें हैं। अगर आप इन सबको सॉल्व कर लेते हो, तो आप ईज़िली जो रिटर्न राउंड होता है, वो निकाल सकते हो। And the third thing is we have all the university labs. आप अपनी यूनिवर्सिटी चूज कर सकते हो, गो टू यूनिवर्सिटी एंड यहाँ पे जैसे मोस्ट ऑफ द पीपल इन टुडे सेशन इज फ्रॉम द राजस्थान। सो बेसिकली जो भी आपके आरटीयू बीटीयू टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, आप उस पर क्लिक करो और उसमें जो जो लैब्स हैं, आप उन लैब्स की सोल्यूशन देख सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज द ऑल अबाउट कि बहुत सारा कंटेंट आपको गोएडियो आपकी साइट पे मिल जाता है, तो आप इजीली उसको पढ़ सकते हैं। अब हम आते हैं मशीन लर्निंग पे, जो हम पढ़ेंगे बेसिकली मशीन लर्निंग में पाइथन मॉड्यूल और मशीन लर्निंग मॉड्यूल के आर्टिकल्स हैं कुछ। ठीक है, सो फर्स्ट आर्टिकल इज पाइथन बेसिक इंट्रोडक्शन। एक्चुअली क्या है पाइथन, क्यों हम पाइथन पढ़ते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं पाइथन में, हम ये चीजें करेंगे। इससे पहले आपके एक प्रीरिक्विजिट है पाइथन स्टार्ट करने से पहले, आपके पास सेटअप होना चाहिए पाइथन का, राइट? आप सब लोगों के पास सेटअप होना चाहिए, लाइक सम पीपल ऑलरेडी हैव एंड किसी के पास अभी कुछ नहीं है, ऐसा भी है। तो बेसिकली मैं आपको बता देती हूँ कि हम लोग कैसे करेंगे। आप क्या सेटअप डाउनलोड कर सकते हो, आप सिंपल लाइक आप कोई भी एडिटर यूज कर सकते हो पाइथन में। मैं नॉर्मल पाइथन भी आप इंस्टॉल करके यूज कर सकते हो, बट नॉर्मल पाइथन मैं प्रेफर नहीं करूंगी बिकॉज एडिटर में थोड़ा काम करना आपके लिए इजी और उसमें फंक्शनलिटी आपको ज्यादा मिल जाती है। तो आप लोग जैसे मैंने यहाँ पे अपने सिस्टम में एनाकोंडा इंस्टॉल कर रखा है। एनाकोंडा इंस्टॉल आप करते हैं तो आपको जुपिटर नोटबुक और स्पाइडर और कई सारे एडिटर एक साथ मिल जाएंगे, तो आप उनको यूज कर सकते हैं, राइट? और जैसे कि कुछ लोगों के पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, लाइक आप लोग मुझे बता सकते हैं, कुछ लोगों के पास पाईचार्म होगा, कुछ के पास विजुअल स्टूडियो होगा, तो आप उनमें से किसी में भी कर सकते हैं, बट आई रिकमेंड यू कि आप एनाकोंडा इंस्टॉल कर लो, वो इजी रहेगा। और अगर आपको किसी और एडिटर पे प्रैक्टिस है तो आप दूसरे पे भी कर सकते हो, इट इज नॉट द कंपल्सन। ठीक है, एंड कैसे हम इंस्टॉल करेंगे एनाकोंडा, लाइक आप यूट्यूब पे जाना, यूट्यूब पे गोएड्यू हब का चैनल है, आप सब लोग उसको देखेंगे, वहां पे मैंने वीडियोस डाल रखे हैं। आफ्टर द क्लास देखना, ये मैं आपको केवल शो कर रही हूँ अभी। आप सबको सब्सक्राइब भी करना है ये चैनल, ठीक है ना? नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे यहाँ पे, लाइक बहुत सारे वीडियोस हम डालते रहते हैं यहाँ पे, कई बार लाइव भी होता है यहाँ पर, तो आपको अलग अलग टॉपिक की अलग अलग नॉलेज मिलती रहती है। लाइक इसमें इंस्ट्रक्टर लेड क्लासेस फॉर मशीन लर्निंग विथ पाइथन, ये एक है। इसमें आप अलग अलग क्लासेस हैं, तो इसमें आप पहले वीडियो पे जाएंगे या आप प्ले लिस्ट देख लेना, एक सेकेंड। इंस्ट्रक्टर लेड लाइव क्लासेस फॉर द मशीन लर्निंग, इसमें जो फर्स्ट वीडियो है, आई एम नॉट एबल टू सी दैट, लाइक पाइथन इंस्टॉल सर्च कर लेना, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी चेक इट आउट। Search. पाइथन इंस्टॉलेशन, ठीक है, ये वीडियो है, इसमें एनाकोंडा कैसे इंस्टॉल करते हैं ये आप देख सकते हो पूरा। ठीक है, एंड पाइथन इंट्रोडक्शन भी एक वीडियो है, वैसे तो मैं आपको बता ही रही हूँ सारा, बट उसको भी आप देखेंगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा है। दो छोटे छोटे वीडियो हैं, ये आप देखना क्लास के बाद। पाइथन इंट्रोडक्शन,
तो पाइथन इंट्रोडक्शन में आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या चीजें होती हैं इसमें। ठीक है, अब हम लोग आते हैं, मैं एक बार और बता देती हूँ आप कैसे इंस्टॉल करेंगे। आप एनाकोंडा की साइट पे जाएंगे, वहां एक बार आप मुझे बताएंगे आपके पास कौन कम से कम वो लोग मुझे बता सकते हैं जिनके पास पाइथन में कुछ भी इंस्टॉल्ड नहीं है, या फिर आप लोग ये बता सकते हैं आप क्या यूज कर रहे हैं, ताकि मुझे आइडिया लग जाए कि आप लोग कैसे करेंगे। Subham is written he's using Jupyter Notebook. Maipal is written PyCharm, and Vartika is written Jupyter Notebook. Tanvi is written Jupyter Notebook, Anaconda. Okay. And what about the rest people? Okay, Divya have Python shell as well as Anaconda Navigator. Okay, Dushyant is written I can install Anaconda after the class. Okay, Dushyant. And Surendra is using Jupyter Notebook, and Tosik is none, and Khushbu Saini is not installed anything. Okay, so Tosik and Khushbu and 2-3 people are remaining जिन्होंने कुछ install नहीं किया, please after the class install the Anaconda. Okay, Anaconda install करना, आप Google पे डाउनलोड Anaconda करेंगे या जो मैंने वीडियो बताया उसको देख लेना, उसमें स्टेप्स मैंने लिखी हुई हैं, बताई हुई हैं, पूरा करके दिखाया हुआ है। ठीक है, आप उस पर यूज कर सकते हैं, उस पर आप प्रैक्टिस आप कर सकते हैं काम। ठीक है, और फॉर द टाइम बीइंग अभी के लिए मैं आपको, जिसके पास कुछ नहीं है, मैं एक बार आपको गूगल कॉलैप्स शो कर देती हूँ। गूगल कॉलैप्स पे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो मैं आपको गूगल कॉलैप्स कैसे यूज करते हैं वो बता देती हूँ, ताकि अभी आप क्लास में मेरे साथ के साथ काम कर लेंगे। आप अपने सिस्टम में टाइप कीजिए गूगल कॉलैप्स, आप टाइप करेंगे गूगल कॉलैप्स, सर्च करेंगे तो जो फर्स्ट लिंक आएगा गूगल कॉलैप्स का, उसको ओपन कर लीजिए आप। ठीक है, उसको ओपन करने पे आपको जीमेल साइन इन पूछेगा, अगर आपका साइन इन है देन ये आपको इस तरह से मेरी जैसी स्क्रीन पे ला देगा। आपको न्यू नोटबुक ओपन करना है। ओके, न्यू नोटबुक आप ओपन करेंगे तो इस तरह की आपकी स्क्रीन ओपन हो जाएगी। यहाँ पे हम चीजें कर सकते हैं, यहाँ पे हम पाइथन का कोड लिख सकते हैं। पाइथन में एक मैं हेलो लिख रही हूँ। हेलो कैसे लिखते हैं, प्रिंट एक फंक्शन होता है, प्रिंट फंक्शन के अंदर आप कुछ भी लिखो वो एज इट इज प्रिंट हो जाता है डबल कोट्स में। तो जैसे मैंने लिखा प्रिंट डबल कोट्स हेलो, तो इससे क्या होगा, मेरा हेलो ये प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो गाइस जिनके पास कुछ नहीं है प्लीज, जिनके पास जुपिटर नोटबुक या जो भी है उसको ओपन कर सकते हैं। उसके अलावा जिसके पास कुछ नहीं है वो अभी की आज की क्लास के लिए ये गूगल कॉलैप्स ओपन कर सकते हैं, उसमें अपन काम कर सकते हैं अभी साथ के साथ। Because today I have planned, we will cover basic introduction of agenda of today's class is basic introduction of Python, and how to write the if else conditions in the Python, how to write the loop in the Python. These three topics we will cover. And after the class I'll provide some assignment for the loop and condition, तो वो आपको बैठ के क्लास के बाद करना है। ठीक है ना, जस्ट ओपन कीजिए, जिनके पास नहीं है प्लीज ओपन कर लिए। मैं 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ, आप लोग मेरे साथ साथ काम करना। ओके गाइस, ऑल आर रेडी, अब हम लोग कर सकते हैं प्रैक्टिकल। ठीक है, तो सबसे पहले मैं कुछ सिंपल सिंपल चीजें बता रही हूँ आपको कि हम लोग इफ एल्स कैसे, हम लोग पाइथन में कोडिंग लिखना कैसे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पाइथन लैंग्वेज में
आपको मीन फंक्शन या कुछ भी इस तरह का कर्ली ब्रेसेस कुछ भी ऐसी चीजें यूज नहीं करनी। आप सिंपल लाइक मुझे हेलो लिखना है तो आप प्रिंट फंक्शन के अंदर हेलो पास कर सकते हैं, ये सिंपली प्रिंट हो जाएगा। ओके, एंड सेकेंड थिंग इज आपको क्या करना है, कोई एक वेरिएबल लाइक a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 20, c इज इक्वल टू a प्लस b, राइट। और अब मुझे इस वेरिएबल को प्रिंट करना है c को, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, प्रिंट c। अब देखो इसका आउटपुट आप लोग देखेंगे 30 आ गया। अब आपने सी भी पढ़ी होगी, सी तो सब पढ़ते हैं हम फर्स्ट ईयर में। सी में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कोई इंटीजर डिक्लेयर करते हैं तो हम ऐसे लिखते हैं इंट a, राइट, फ्लॉट b, किसी भी जो भी वेरिएबल आप डिक्लेयर करते हैं आप उसका डेटा टाइप लिखते हैं। यहाँ पे हमने कोई भी डेटा टाइप नहीं लिखा है, यू कैन सी हियर मैंने कोई डेटा टाइप नहीं दिया है। सो मुझे पाइथन को कैसे पता कि क्या डेटा टाइप है। आप लोग इसको चेक कर सकते हो, लाइक यहाँ पे एक फंक्शन होता है टाइप ऑफ ए, और इसको मैं प्रिंट के अंदर पास कराऊंगी, प्रिंट टाइप ऑफ ए, और इसको मैं देखूंगी तो ये आया क्लास इंट। अब यहाँ से आपको क्या हिंट मिला, बेसिकली दिस इज ए इंटीजर and class int means Python have each and everything in the form of class and objects। ठीक है, पाइथन में क्लासेस के फॉर्मेट में होता है। तो आपको कहीं पे भी इससे ये कंक्लूजन निकलता है, आपको कहीं पे भी डेटा टाइप डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली डिक्लेयर कर सकते हैं। गाइस मे बी आपको ये क्लास थोड़ी बेसिक लगे, पर ये क्लास पढ़ानी जरूरी है, बिकॉज मुझे हर स्टूडेंट का ध्यान रखना पड़ता है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को ऑलरेडी आता है, बट कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिन्होंने कभी कुछ भी नहीं किया, इसलिए फर्स्ट क्लास हमारी बहुत बेसिक क्लास रहती है जिसमें हमें बेसिक इंट्रोडक्शन मिलता है पाइथन का, राइट। धीरे धीरे मैं उसको थोड़ा फास्ट कर दूंगी, एक वीक बाद आप बोलोगे मैम आप थोड़ा धीरे पढ़ाओ, तब आपको लगेगा कि हम बहुत सारी नई चीजें सीख रहे हैं, राइट। Like come to here, Python basic introduction. I'll just opening this tutorial, Python basic introduction. Dushyant is asking, ma'am, can you please repeat about the data type? Basically, Dushyant, in the Python, हमारे पास हमें अलग से डेटा टाइप डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। We do not need to declare data type. Like in the C, we need to write int a, int b, float c, इस तरह से। यहाँ पे Python will automatically decide कि क्या डेटा टाइप होगा a का, according to value which is assigned to the a। जिस वेरिएबल को आप कोई वैल्यू डालते हो, जैसे आपने यहाँ पे a को 10 डाला तो ये इंटीजर वैल्यू है। अगर मैं 10.0 डालती हूँ, अब मैं इस कोड को रन करती हूँ तो ये क्या आएगा, ये फ्लोट आएगा। बेसिकली आपने जैसी वैल्यू डाली उसके अकॉर्डिंग पाइथन ने डिसाइड किया कि a वेरिएबल है वो किस टाइप का है, वो इंटीजर टाइप का है कि वो फ्लोट टाइप का है कि वो स्ट्रिंग टाइप का है। ठीक है ना, तो आपको अलग से डेटा टाइप डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है, पाइथन ऑटोमेटिकली ले लेता है। एंड यहाँ पे एक नई चीज आपके लिए है कि क्लास, बेसिकली पाइथन में सब कुछ क्लासेस के फॉर्म में होता है, क्लास और ऑब्जेक्ट के फॉर्म में होता है, इसलिए जो इंट है वो एक क्लास है इंटीजर की, फ्लोट है वो एक क्लास है फ्लोट्स की। ओके क्लियर? ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ये अब मैं आपको बताती हूँ व्हाट इज पाइथन। ठीक है, आप इसको खोलोगे, जो मैंने आपको बताया, गो एड्यू हब पे जाओगे, मैं यहाँ से खोल के इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको पढ़ने में दिक्कत नहीं आएगी, आफ्टर द क्लास आप रिवाइज कर सकते हैं। जैसे आप गए गो एड्यू हब पे, फ्री ट्यूटोरियल में मशीन लर्निंग ट्यूटोरियल पे मैंने क्लिक किया, and from there onwards you can read like basics of the Python. You can read this definition. Python is a general purpose, dynamic, high level and interpreted programming language. It supports object oriented programming approach to develop application. देखो guys, यहाँ पे नई टर्म्स हमारे पास क्या आ रही हैं, Python is a general purpose interpreted object oriented language.
What does it mean? Interpreted means we do not need to compile the programs. Like दो स्टेप्स होते हैं। आप एक तो प्रोग्राम को कंपाइल सी में आप पहले प्रोग्राम को कंपाइल करते हो, फिर आप प्रोग्राम को रन करते हो। यहाँ पे हमें कंपाइल करने की जरूरत नहीं है, पाइथन प्रोग्राम को हम डायरेक्टली रन कर सकते हैं, राइट? हम डायरेक्टली रन कर सकते हैं, हमें अलग से कंपाइल करने की जरूरत नहीं है। And this is called the interpreted language. Object oriented, it follows all the concepts of object oriented language. OOPS concept like classes, objects, inheritance, all these properties this follows. And general purpose you already know, the normal problem solve करने के लिए आप Python को use कर सकते हैं, right? एंड लेटेस्ट आप देख सकते हो पाइथन का लेटेस्ट वर्जन, ये हिस्ट्री है, हिस्ट्री मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप खुद रीड कर सकते हो हिस्ट्री कब डेवलप हुई। लाइक नाउ डेज विच वर्जन ऑफ पाइथन इज लेटेस्ट? 3.8 आई थिंक 3.8 is latest. You can see that over the www.python.org, पाइथन के ऑफिशियल साइट पे आप ये चीजें देख सकते हो कि लेटेस्ट वर्जन क्या चल रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं पाइथन क्यों हम लोग, ऐसी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं पाइथन की जिनकी वजह से हम पाइथन को यूज करते हैं। एक चीज मैंने आपको पहले भी बताई थी, क्लास स्टार्ट होते ही किसी ने क्वेश्चन पूछा था हम पाइथन क्यों यूज करते हैं। पाइथन की बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जैसे इजी टू लर्न, सिंपल स्ट्रक्चर, इजी कीवर्ड्स, अनक्लियर डेफिनेशन सिंटैक्स। इसमें आपको कुछ भी टफ नहीं मिलेगा, कहीं पे भी आपको कीवर्ड्स याद नहीं करने, बहुत सारी चीजें आपको लर्न नहीं करनी, ये डायरेक्टली टेक केयर करता है उन चीजों की। ओके, सेकेंड थिंग इज फ्री एंड ओपन सोर्स। फ्री एंड ओपन सोर्स का क्या मतलब होता है? कोई भी लैंग्वेज फ्री एंड ओपन सोर्स होती है, इट मीन्स वी कैन इजीली डाउनलोड दिस लैंग्वेज एंड वी कैन यूज इट। इसके लिए हमें कोई भी लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। जैसे आप लोगों में से किसी को आइडिया होगा, मैटलैब एक लैंग्वेज होती है, आप मैटलैब जब इंस्टॉल करते हो तो आपको एक लाइसेंस की चाहिए होती है। इवन हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज करते हैं तो हमें एक लाइसेंस की चाहिए होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक आप विंडोज का कोई ऑपरेटिंग सिस्टम डालते हो तो आपको की चाहिए होती है, आपको जेन्युइन विंडो चाहिए होता है। तो वो सारी चीजें होती है लाइसेंस्ड, प्रोप्राइटरी। और एक होता है उबंटू, मतलब लिनक्स में एक उबंटू होता है जिसको आप डायरेक्टली डाउनलोड करो, इंस्टॉल कर सकते हो, ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स मीन्स आपको उसको खरीदने की जरूरत नहीं, आप उसको डायरेक्टली डाउनलोड करो और इंस्टॉल करो, राइट? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, आई ऑलरेडी टोल्ड यू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज क्या होती है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज में हम उप्स के कंसेप्ट फॉलो करते हैं। And portable, Python can run equally on different platforms like Windows, Linux, Unix। आप कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करें, आप हर ऑपरेटिंग सिस्टम पे पाइथन को यूज कर सकते हैं, राइट? लाइक आप विंडो पे भी कर सकते हैं, लिनक्स पे भी कर सकते हैं, सब पे कर सकते हैं। आपको उसको अलग से करने की कोई जरूरत नहीं है कि मेरा इसी प्लेटफॉर्म पे कंपैटिबल है, ओके? And it is a portable, expressive language. Python codes are simple, more readable and understandable. As I told you, it is just like the English language. Extensible, आप other languages के प्रोग्राम के साथ भी इसको एक्सटेंड कर सकते हैं Python के कोड को। And integrated, like it can be easily integrated with the languages like C, C++ और Java. एंड क्या क्या कहाँ कहाँ, मतलब कि और क्या क्या चीजें कर सकते हैं पाइथन से? आप जीयूआई बना सकते हो। जीयूआई क्या होता है? बेसिकली ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। लाइक ये जो हम ब्राउजर पे जो हम कुछ भी सर्च करते हैं वो क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। लाइक मैंने ये खोला गो एडू हब का पेज, मैं youtube.com पे गई, वहां मैंने कुछ सर्च किया, तो ये मेरे लिए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, बट यूट्यूब ने इसके पीछे कोडिंग करी है, तो उनके लिए चाहे वो कोडिंग का पेज होगा, बट जो यूजर यूज कर रहा है उसको एक ग्राफिक्स मिल रही है, कहीं क्लिक कर रहा है, कहीं बटन दबा रहा है, उन चीजों को करने से उसका काम हो रहा है। तो आप बेसिकली ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से अपन इंटरेक्ट करते हैं। And the beautiful concept of the Python is it have large standard library। मतलब इसमें हमारे पास
कितनी सारी लाइब्रेरीज अवेलेबल होती हैं जिनको यूज करके हम बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स इजीली सॉल्व कर सकते हैं, बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स हम इजीली कर सकते हैं, ठीक है ना। तो लाइब्रेरीज का बहुत बेनिफिट होता है यहाँ पे। लाइब्रेरीज मतलब आपको एक तरह से इनबिल्ट फंक्शनैलिटी मिल रही है बहुत सारी, आप उस फंक्शनैलिटी को यूज कर सकते हो, ठीक है ना। ओके गाइस, गेटिंग ऑल आर फॉलोइंग, सबको समझ आ रहा है क्या? अभी थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट लग रहा होगा। जस्ट सेंड मी अ क्विक यस। तो मुझे पता चले आप लोग सुन रहे हैं या नहीं। ओके, आई गॉट लॉट्स ऑफ कंफर्मेशन, थैंक यू सो मच। ठीक है गाइस, ओके। ओके ओके, ओके। सो नेक्स्ट थिंग इज, कौन कौन सी एप्लीकेशंस हैं, किस कहाँ कहाँ पाइथन आप लोग यूज कर सकते हो बेसिकली, ठीक है। बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मतलब कि पाइथन को कहाँ कहाँ यूज करते हैं। एक तो जो सबसे डोमिनेटिंग फील्ड है नाउ डेज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इसमें हम लोग पाइथन यूज करते हैं। एक हम वेबसाइट भी बना सकते हैं पाइथन में। पाइथन में फ्रेमवर्क होते हैं, जैसे जैंगो होता है, फ्लास्क होता है, इन सब में हम लोग वेबसाइट बना सकते हैं। तो पाइथन से आप वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं, पाइथन से आप मशीन लर्निंग कर सकते हैं, पाइथन से आप डेटा साइंस, जो मशीन डेटा साइंस एक ब्रॉडर डोमेन है, ठीक है, बिजनेस एप्लीकेशन बना सकते हैं, साइंटिफिक कैलकुलेशन, डेस्कटॉप एप्लीकेशन, गेम्स बना सकते हैं अपन। इसमें लाइब्रेरी होती है, पाई गेम होती है, उससे आप गेम बना सकते हो। तो बहुत सारी चीजें हम रियल लाइफ में पाइथन में कर सकते हैं, ओके। सो सिंपली मैं अभी कोड करना स्टार्ट करती हूँ पाइथन में। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये एक सी का प्रोग्राम है जिसमें हमें कम से कम 5-6 लाइनें एक हेलो वर्ड लिखने के लिए लिखनी पड़ती हैं। एंड पाइथन में हम सीधा सिंपल प्रिंट लिखकर चीजें लिख सकते हैं, तो ये हमारे लिए इजी रहता है, ओके। एंड दिस इज द कमेंट वेरिएबल्स, ये सब चीजें अभी हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे, मैं थ्योरी पार्ट छोड़ रही हूँ यहाँ से। कीवर्ड्स, ये मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। कीवर्ड्स क्या होते हैं? ऑलरेडी इनबिल्ट कीवर्ड्स होते हैं, हर लैंग्वेज में होते हैं कीवर्ड्स, जिनको हम वेरिएबल का नाम नहीं दे सकते हैं, जिनका मीनिंग पहले से लैंग्वेज में डिफाइंड है। लाइक आप फॉर यूज कर रहे हैं, इट मीन्स इट इज यूज फॉर द लूप, ठीक है। तो जो इनबिल्ट कीवर्ड्स होते हैं लैंग्वेज में, वैसे पाइथन में भी कुछ इनबिल्ट कीवर्ड्स होते हैं। जस्ट ए सेकेंड गाइस, जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ मिनट।
Okay, guys. So we were doing the Python keywords. Sorry for holding. Actually, कुछ important call था. That's why I need to attend it. पाइथन कीवर्ड्स में हम लोग क्या कर रहे हैं, बहुत सारे कीवर्ड्स डिफाइंड होते हैं, तो यहाँ पे भी कुछ कीवर्ड्स डिफाइंड हैं, हर लैंग्वेज में होते हैं। ऑपरेटर्स होते हैं। अब मैं आपको पहले कोड पार्ट दिखाती हूँ, खुद लिख कर दिखाती हूँ कोड, जिससे कि आपको इजी लगेगा, आपको करने में इंटरेस्ट आएगा। तो आप लोग मेरे साथ फॉलो करेंगे। हमने सिंपल दो वेरिएबल लिए हैं, दो वेरिएबल्स का सम करके प्रिंट किया है। ठीक है। आपको पाइथन में कुछ भी स्ट्रिंग प्रिंट करनी है तो आपको डबल कोट्स में लिखना है, डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में। हेलो, एम आई ऑडिबल? हेलो। ओके ओके, मुझे लगा आवाज नहीं आ रही। ओके। सो सबसे पहले हमने क्या किया, दो वेरिएबल्स लिए, वेरिएबल का सम करके प्रिंट कराया। स्ट्रिंग को मैंने यहाँ प्रिंट कराया डबल कोट्स में। तो जैसे यहाँ पे मेरे को स्ट्रिंग भी प्रिंट करानी हो, लाइक मुझे लिखना हो, डबल कोट्स में जो लिखूंगी वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। लाइक मैं लिख रही हूँ वैल्यू ऑफ सी इज इक्वल टू, एंड डबल कोट्स क्लोज कर दीजिए, कॉमा, एंड देन वेरिएबल का नाम आप लिख देंगे तो उस वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। Like how output will look like, value of c equals to 30 dot 0। तो ये आपको जो आपने डबल कोट्स में लिखा वो एज इट इज आ गया। उसके बाद आपको कोई वेरिएबल लिखना है तो कॉमा करके आप लिख सकते हैं। ठीक है। और आपको जैसे ये हमने इंटीजर और फ्लोट डिक्लेयर करने का तरीका देखा। अब इसी तरह से मैं एक वेरिएबल लेती हूँ एक्स्ट्रा। थोड़ा बड़ा करूंगा मैं स्क्रीन को, कुछ लोग कह रहे हैं दिख नहीं रहा। नाउ विजिबल? लाइक मैंने एक और वेरिएबल लिया, नेम इज इक्वल टू, डबल कोट्स में मैंने लिख दिया गो एड्यू हब। ओके। एंड मुझे ये देखना है, नेम को भी प्रिंट कराना है मुझे, तो प्रिंट, मैं सीधा वेरिएबल को प्रिंट कर सकती हूँ, प्रिंट नेम। एंड दो स्ट्रिंग्स को कॉन्कैट कराना आपको, तो आप क्या कर सकते हैं, एक और स्ट्रिंग आपको देनी है तो आप प्लस दे सकते हैं यहाँ पे, प्लस डबल कोट्स में आप जो लिखेंगे वो एज इट इज आएगा, फिर आप प्लस एंड डबल कोट्स में आपने लिखा टेक्नोलॉजीज। ठीक है। अब इसका मतलब क्या होगा, नेम में जो भी होगा वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, प्लस उसके बाद एक स्पेस लिया मैंने। ठीक है। फिर मैंने एक और स्ट्रिंग लिया, वो टेक्नोलॉजीज। अब मैं इसको रन करके देखती हूँ। देखो, वैल्यू ऑफ c इज इक्वल टू 30 एंड गो एड यू हैव टेक्नोलॉजीज। सो सिंपली कैसे हम लोग इंटीजर और स्ट्रिंग वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, कैसे हम स्ट्रिंग को कॉन्कैट करते हैं, एक के साथ दूसरी स्ट्रिंग आपको लगानी हो तो आप प्लस साइन यूज कर सकते हैं। ठीक है। एंड आप टाइप ऑफ नेम चेक करेंगे तो आपको स्ट्रिंग मिलेगा, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा। किसी भी वेरिएबल को आपको चेक करना है, वैसे अपन को पता रहता है कि वो क्या है, बट स्टिल आपको चेक करना होता है। वैल्यू के अकॉर्डिंग हम देखते ही बता देते हैं कि ये इस तरह का होगा। और आप चेक करके भी टाइप फंक्शन यूज करते हो। टाइप इनबिल्ट फंक्शन है पाइथन में, जो ये बताता है कि ये पर्टिकुलर वेरिएबल का डेटा टाइप क्या है। ओके। सो ये आपको डेटा टाइप बता रहा है, नेम। नेम का डेटा टाइप है str स्ट्रिंग। ओके। अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये तो मैंने किया कि फिक्स वैल्यूज ले ली मैंने, उनका सम कर दिया। इसको बोलते हैं पाइथन कैन वर्क्स एज ए कैलकुलेटर। आप जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस जो करते हो आप डायरेक्टली पाइथन में कर सकते हो। जैसे मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 10 + 20, सिंपल। इसको चलाओ आप तो इसका आंसर आ जाएगा 30, या 10 डिवाइड बाई 2 आप देखेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 5। राइट। सो बेसिकली आप सिंपल कैलकुलेटर में जैसे कैलकुलेशन करते हो वैसे पाइथन में भी कर सकते हो। दुष्यंत इज आस्किंग डबल एंड सिंगल कोट्स में मैम डिफरेंस, दोनों यूज करते हैं अपन स्ट्रिंग के लिए, कोई डिफरेंस नहीं है। कई लोग सिंगल कोट्स यूज करते हैं, कई लोग डबल कोट्स यूज करते हैं, दोनों स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों एक ही बात है, कोई डिफरेंस नहीं। ओके।
अब मैं क्या कर रही हूँ, जैसे मैंने ये तो क्या हुआ, फिक्स वैल्यूज दे दी, लाइक ए की वैल्यू मैंने पहले से डिसाइड कर दी 10, बट अब मुझे क्या करना है, मुझे ए की वैल्यू यूजर से इनपुट लेनी है। सो उसके लिए मैं क्या करूंगी, एक यूजर इनपुट फंक्शन होता है, a इज इक्वल टू इनपुट फंक्शन। जैसे ही मैंने a इज इक्वल टू इनपुट लिखा, इसका मतलब यूजर से ये इनपुट मांगेगा ए की वैल्यू, मैंने कुछ भी नहीं दी, देखो यहाँ पे एक बॉक्स आ गया। अब इसके अंदर मुझे वैल्यू पुट करनी है, लाइक मैंने डाली 45। ओके, अब आप ए को चेक करोगे, प्रिंट ए। देखो जुपिटर में एक बेनिफिट होता है, आपको कोई एक वैल्यू सीधा आपको एक चीज वैल्यू प्रिंट करनी है तो आप सीधा उसका नाम दे सकते हैं वेरिएबल का। आपने यहाँ ए लिखा, चाहे आप प्रिंट ए लिखो, दोनों एक ही बात होती है। ए और प्रिंट ए इक्विवेलेंट होते हैं। लाइक मुझे बी का भी वैल्यू प्रिंट करना है, तो क्या होगा, जो लास्ट वेरिएबल है उसकी वैल्यू प्रिंट होगी। इस केस में केवल मुझे बी की वैल्यू आउटपुट में देगा, ए की नहीं देगा। बी की वैल्यू मैंने ऊपर 20 डिफाइन कर रखे हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जुपिटर नोटबुक में जैसे मेरे को मल्टीपल चीजों में से कोई एक लास्ट वाले चीज को प्रिंट करना है, तो मैं उसको प्रिंट के अंदर नहीं डालूं तो भी हो जाएगा। अब मैं इसको ऐसे लिख दूंगी, प्रिंट ए, ओके, एंड बी। इसका मतलब क्या है, पहले तो ए को प्रिंट करेगा और बी को बाय डिफॉल्ट प्रिंट करेगा ये, क्योंकि लास्ट जो भी वेरिएबल होता है उसको चाहे आप प्रिंट में दो चाहे मत दो, जुपिटर आपको उसका आउटपुट दे देगा। लास्ट कुछ भी आपने लिखा है, कोई एक चीज, ये दोनों इक्विवेलेंट है। जैसे मैंने प्रिंट ए और प्रिंट बी लिखा, इसका मतलब, और प्रिंट ए और बी लिखा, दोनों का मतलब सेम है। ओके, सो मैंने यूजर से इनपुट लिया। अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, लाइक ए का अपन ने इनपुट लिया यूजर से ए। अब मुझे ए का डेटा टाइप चेक करना, प्रिंट टाइप ऑफ ए। लाइक ए कॉमा टाइप ऑफ ए की वैल्यू और ए का टाइप। अब आप देख सकते हो ए की वैल्यू क्या है, 45, मैंने 45 एंटर किया था। और टाइप देखो यहाँ पे सबसे ये देखने लायक चीज है कि यहाँ पे टाइप जो है वो स्ट्रिंग आ रहा है, जबकि मैंने क्या डाला था 45, एंड 45 हम सब जानते हैं एक नंबर है। So basically it should be an integer, but Python is calling it a string. What is the magic behind this? कि Python जो भी यूजर से इनपुट लेता है बाय डिफॉल्ट एज ए स्ट्रिंग लेता है। चाहे आप स्ट्रिंग डालें, चाहे आप इंटीजर डालें, चाहे आप फ्लोट डालें। जैसे कि मैं डालती हूँ अभी फ्लोट, लाइक अब मैं डालती हूँ 4.5। ओके, so you can see here a is equal to 4.5, class is string। इसका मतलब क्या है, पाइथन में आप कुछ भी यूजर से इनपुट लो वो उसको एज ए स्ट्रिंग ट्रीट करेगा। अब मुझे चाहिए नंबर, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे उस स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना पड़ेगा। लाइक मुझे किस में करना है, इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है। सो मुझे क्या करना पड़ेगा, a इज इक्वल टू इंट ए, सॉरी इंट ए। और अब मैं a को टाइप ऑफ ए चेक करूंगी, या मैं सीधा इसी प्रिंट को ले लेती हूँ, वैल्यू ऑफ ए एंड टाइप ऑफ ए। ओके, क्या किया मैंने, int argument must be a string, a bytes like object or a number, not type। बेसिकली मैंने जो इनपुट लिया है वो फ्लोट है, वो स्ट्रिंग इंटीजर नहीं है ना। एक सेकेंड, मैं यूजर इनपुट दोबारा लेती हूँ, इसलिए ये दिक्कत। 4, okay, and then you can check it this and this। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मैंने यूजर से इनपुट लिया वो 4 था, 4 का मैंने टाइप चेक किया, टाइप ऑफ 4 इज ए स्ट्रिंग, यू कैन सी हियर। अब मुझे क्या करना है, स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करना है।
तो मैं किससे पास कराऊंगी? इंट फंक्शन से। फ्लोट में कन्वर्ट करना होता है तो मैं फ्लोट फंक्शन से पास कराती, और उसके बाद आप टाइप चेक कर सकते हैं। लाइक मैं इन प्लेस ऑफ इंट यहाँ पे फ्लोट लिख देती हूँ। देखो 4 की जगह 4.0 हो गया एंड क्लास क्या हो गई? फ्लोट। सो बेसिकली बाय डिफॉल्ट, ये याद रखने की चीज है, बेसिकली बाय डिफॉल्ट पाइथन इनपुट लेता है एज ए स्ट्रिंग। आपको फिर जिस तरह का डेटा आप इनपुट देना चाहते हैं उस तरह के डेटा में आप कन्वर्ट कर सकते हैं उसको। तो ये आपने अलग से लिखा, ये अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे सीधा भी लिख सकते हैं। लाइक जैसे इनपुट लिया उसको फ्लोट फंक्शन में से या इंट फंक्शन में से पास करा दो, तो दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। जैसे मैंने यहाँ यूजर से इनपुट लिया, मैंने लिया 10। अब क्या होगा? टाइप ऑफ 10 इज ए स्ट्रिंग, मतलब टाइप ऑफ 10 इज ए फ्लॉट। फ्लॉट में ये हमने यहीं पे कन्वर्ट कर दिया, तो आपको ये अलग से कोड लिखने की जरूरत नहीं है ये चीज। तो हम जहां पे यूजर इनपुट लेते हैं हम वहीं पे कौन से डेटा टाइप में चेंज करना है वो चेंज कर सकते हैं। ऑल आर गेटिंग? गाइस जस्ट टेल मी, आप लोगों को समझ आ रहा है क्या? मैंने ज्यादा कुछ नहीं बताया, मैंने सिंपल यूजर इनपुट कैसे लेते हैं पाइथन में। यूजर इनपुट बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग टाइप का होता है, उसको आप अपने डेटा टाइप में कन्वर्ट कर सकते हो। और पाइथन में अपन हेलो कैसे प्रिंट करते हैं, वेरिएबल्स का सम कैसे करते हैं, इंटीजर कैसे डिक्लेयर करते हैं, स्ट्रिंग्स कैसे करते हैं, ये सब चीजें। ओके, सो आई गॉट लॉट्स ऑफ कंफर्मेशन, थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल। ओके, ठीक है, किसी को कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो, वैसे अभी तक हमने बेसिक चीजें की हैं। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हमें यूजर इनपुट लेना आ गया और हम लोगों को सिंपल पाइथन में कोड लिखना आ गया। अब आप पाइथन में कोई भी कोड लिखते हैं तो आपको सबसे पहले क्या चीज चाहिए होती है? आपको कंडीशन लिखनी आनी चाहिए, आपको इफ एल्स लिखना आना चाहिए। मतलब सिंपल कोड आप लिखेंगे अभी। जैसे मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन दूं कि यूजर से 2 इनपुट वेरिएबल्स पुट लो और उनका सम करके प्रिंट करा दो, तो ये चीज आप करने के लिए अभी एलिजिबल है, आप कर सकते हैं। यूजर से 2 वेरिएबल इनपुट लो, उन दोनों की वैल्यू सम करा के तीसरा वेरिएबल को आउटपुट प्रिंट करा दो। सिंपल, ये हम सबको आता है अभी। बट अब हमें क्या करना है? हमें कंडीशंस लिखनी है। लाइक मैंने यूजर से 2 वेरिएबल इनपुट तो ले लिया, उनका सम करा दिया। अब मैं चाहती हूँ कि 2 वेरिएबल यूजर से इनपुट लिए, लेकिन कौन सा बड़ा वेरिएबल है ये मुझे पता करना है। ठीक है, तो मैं उसके लिए मुझे कंडीशन लिखनी पड़ती है। कंडीशंस क्या होती हैं? हर लैंग्वेज में कंडीशंस होती हैं। आप एक स्पेसिफिक कंडीशन ट्रू होने पे एक पर्टिकुलर कोड एग्जीक्यूट करते हैं, तो वो कंडीशंस हम इफ एल्स के फॉर्मेट में लिखते हैं। और इससे पहले आप एक चीज ये भी देख सकते हो, जैसे आपको पाइथन में कुछ कमेंट करना हो तो यहाँ पे आप हैश से कमेंट करते हैं। हैश करने के बाद ये ग्रीन हो गया, तो ये कमेंट हो गया अब आपका। और आपको मल्टीपल लाइनों का कमेंट, ये जैसे 2 लाइन है, इसमें दोनों को अलग अलग हैश लिखना, तो दोनों अलग अलग कमेंट हो गए। अब दोनों को मुझे एक साथ कमेंट करना है, तो ट्रिपल सिंगल कोट्स 1 2 3, ठीक है, एंड 1 2 3। अब इसको रन करोगे तो ये एक कमेंट है, इसमें कुछ भी नहीं है। ओके, सो अब हम लोग आ जाते हैं वापस अपने थ्योरेटिकल पार्ट पे, कि आपको क्या करना है क्लास के बाद। ये सारे कीवर्ड्स, ये कीवर्ड्स हैं कि हमें, ये सिंपल मैंने आपको बता दिया, a इज इक्वल टू 20, b इज इक्वल टू गो एडू अब प्रिंट a कोमा b, x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू z इज इक्वल टू 50। तो हर वेरिएबल में 50 चला जाएगा, आप इनको प्रिंट करोगे तो 50 आ जाएगा। मतलब तीनों वेरिएबल्स में a की वैल्यू जाएगी 50। एंड एक a कोमा b कोमा c इज इक्वल टू 1 कोमा 2 कोमा 3 मीन्स a में वैल्यू जाएगी 1, b में जाएगी 2 एंड c में जाएगी 3। ठीक है, एंड अब आपको ऐसे देखना होता है, जैसे मैंने आपको एक चीज और बताई थी, एक और इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको बताती हूँ। लाइक मैंने डाला a कोमा b,
कॉमा सी इज इक्वल टू 10 कॉमा 20 कॉमा 30। ठीक है, ए में चला गया 10, बी में चला गया 30, 20 और सी में 30। लाइक सी और प्रिंट करके हम देख लेते हैं। अब देखो पाइथन में मैंने कहा था आपको सब कुछ एज ए ऑब्जेक्ट होता है, तो आप कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो वो बेसिकली एक ऑब्जेक्ट की तरह होता है। लाइक आप क्या कर सकते हो, वो एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर होता है बेसिकली। एक मतलब ब्लॉक बनता है, उसमें एक ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का एड्रेस कि वो कहाँ पर स्टोर हुआ है। तो मैं यहाँ पे देख सकती हूँ जैसे सी का एड्रेस, आईडी ऑफ सी। ये सी कौन से एड्रेस पे स्टोर हुआ है। लाइक हम यहाँ पे पेन लेते हैं, ड्राइंग पेन। जैसे ही आपने सी डिक्लेयर किया, सी इज इक्वल टू 30 आया, इट मीन्स क्या हुआ, एक ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है, इसी तरह बी का एक ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट बन गया। सॉरी, बी में क्या है, 20 है ना, 20। ठीक है, अब क्या ये बी वेरिएबल इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, सी वेरिएबल इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है। अब जैसे मैंने एक और वेरिएबल लिखना है x। ठीक है, x इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 20 लिख देती हूँ। अब आप देख रहे हो x है 20 और b भी मेरा 20 है। इट मीन्स दोनों एक ही ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं। अब मैं क्या करूंगी, मैं दोनों का एड्रेस प्रिंट करूंगी। प्रिंट id ऑफ a। ठीक है, एंड id क्या बताता है, एड्रेस बताता है। a b c और x, b c एंड x। ओके, अब आप देखो इसको अच्छे से। आप लोग देखेंगे कि b और x दोनों का एड्रेस सेम है। ये b का एड्रेस है, ठीक है, और ये लास्ट वाला है x का एड्रेस। इससे आपको क्या पता चला, मतलब जैसे ही मैंने b इज इक्वल टू 20 किया तो एक ऑब्जेक्ट बन गया b 20, और उस ऑब्जेक्ट को कौन पॉइंट कर रहा है, b। सिमिलरली उसी जैसे ही मैंने ये किया x is equal to 20, it means x is pointing the same object, right? So basically एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर हुआ, जो भी आप नंबर्स डाल रहे हैं उसका, एंड जो वेरिएबल है वो उसको पॉइंट करता है एक तरह से। ठीक है ना, वो ऑब्जेक्ट किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का। और ये आप एड्रेस से चेक कर सकते हैं। अब आप क्या करोगे, b इज इक्वल टू 40 कर दिया आपने। लाइक यहाँ पे b इज इक्वल टू 40। ठीक है, और अब आप एड्रेस करो। अब b का एड्रेस डिफरेंट हो जाएगा, b का एड्रेस बदल गया। इट मीन्स क्या हुआ, यहाँ पे आप लोग देखेंगे एक और नया ऑब्जेक्ट बन जाता है, उसमें क्या वैल्यू होती है, 40। और अब मेरा b क्या करेगा, अब मेरा b जो है वो 20 को पॉइंट ना करके 40 को पॉइंट करेगा। लाइक ये यहाँ से क्रॉस हो जाएगा। एक सेकेंड में कलर चेंज करती हूँ। ये यहाँ से कट हो जाएगा और ये b अब पॉइंट किसको करेगा, 40 को। सो बेसिकली आप जो भी वैल्यूज डालते हैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, एंड जो ये मेरे वेरिएबल्स हैं वो उसको पॉइंट करते हैं। ये इंटरनल पाइथन में क्रिएट होता है। ठीक है, सो जनरली अपन ने क्या देखा, अपन ने वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट था उसको चेंज नहीं किया, अपन ने एक नया ऑब्जेक्ट बनाया। इसको बोलते हैं इम्यूटेबिलिटी। ऐसे नहीं कि यहाँ 20 को हटा के 40 कर दिया। यहाँ 20 को 40 कर देते तो सेम मेमोरी एड्रेस आता, बट यहाँ 20 को 40 नहीं किया, 40 एक अलग लोकेशन पे बना। इट मीन्स
जो आप इंटीजर्स, फ्लोट्स, जो नंबर्स लेते हो, इन सब में जब आप कोई नया वैल्यू डालते हो, इसका मतलब एक नया ऑब्जेक्ट बनता है। पुराने ऑब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं, पुराने ऑब्जेक्ट में हम कुछ भी चेंज नहीं करते हैं। इस चीज को बोलते हैं इम्यूटेबिलिटी। यू कैन नॉट चेंज द वैल्यू, यू आर क्रिएटिंग ए न्यू वन। दिस इज कॉल्ड द इम्यूटेबल। ओके, क्लियर इम्यूटेबिलिटी? अब मैं आपको क्या दिखाती हूँ, अब मैं आपको इफ एल्स लिखना सिखाती हूँ कि हम पाइथन में इफ एल्स कैसे लिखते हैं। इससे पहले गाइस आप लोग ये देख सकते हो, लाइक ये चीजें देख लोगे, आप खुद ही पढ़ लोगे, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, मैंने सारी चीजें बता दी हैं। ऑपरेटर्स, सिंपल ऑपरेटर्स, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, और यहाँ पे एक नया ऑपरेटर है डबल स्टार। लाइक आपको 2 टू पावर 3 करना है तो 2 डबल स्टार 3। For the power we are using double star. Okay, so exponent के लिए हम डबल स्टार यूज करते हैं। ठीक है, इसी सिंपल ऑपरेशंस करके दिखा रहे हैं, ये सब आप पढ़ोगे क्लास के बाद। ठीक है ना, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल, इक्वल, नॉट इक्वल, ये सारे ऑपरेटर्स होते हैं। ठीक है, लॉजिकल, यहाँ पे आपको कोई कंडीशन चेक करनी है, दो कंडीशंस चेक करनी है, तो आप सिंपल ए एंड डी एंड लगा सकते हो। जैसे सी में, उनमें अपन सिंबल लिखते हैं ना एंड का, यहाँ पे सिंबल की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली ए एंड डी लिख सकते हैं, ओ लिख सकते हैं, ओ आर, एन ओ टी, नोट लिख सकते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे एक नया ऑपरेटर आता है। ये सारे ऑपरेटर्स वैसे तो अभी काम आएंगे, तब मैं बताती जाऊंगी, एक बार फिर भी आप गो थ्रू कर लेना तो आपको चीजें समझ आ जाएंगी। ठीक है, अब मैं आपको कंडीशन लिखना सिखा रही हूँ, और डेटा टाइप कंडीशन के बाद हम डेटा टाइप्स देखते हैं। ये जो डेटा टाइप्स हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। वैसे पाइथन में दो तरह के डेटा टाइप होते हैं, एक होता है इम्यूटेबल, एक होता है म्यूटेबल। इम्यूटेबल क्या होता है, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। जैसे हमने अभी A = 20 रखा था, जिस ऑब्जेक्ट में 20 है उसमें अब 30 नहीं हो सकता, उसमें 50 नहीं हो सकता, आप एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। ठीक है, सो इम्यूटेबल मीन्स अनेबल टू चेंज, यू कैन नॉट ऐड और रिमूव द वैल्यू। ठीक है, आप नया ऑब्जेक्ट बनाते हैं। एंड म्यूटेबल मीन्स यू कैन चेंज, यू कैन ऐड एंड रिमूव वैल्यूज। हम ये दोनों डिटेल में पढ़ेंगे अभी। जैसे इम्यूटेबल का एग्जांपल तो हम कॉन्स्टेंट्स ले रहे हैं, एंड इम्यूटेबिलिटी का एग्जांपल हम लेंगे स्ट्रिंग, सॉरी, इम्यूटेबल का एग्जांपल है नंबर, स्ट्रिंग, टपल, एंड म्यूटेबल के एग्जांपल आपके होंगे लिस्ट, डिक्शनरी, सेट्स। ये सब म्यूटेबल है। म्यूटेबल मीन्स उनमें आप और एलिमेंट भी डाल सकते हो, कोई एलिमेंट है उसको आप अपडेट करना चाहते हो, अपडेट भी कर सकते हो, और आप एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी डाल सकते हो। ओके, अब हम लोग आते हैं इफ एल्स कंडीशंस कैसे लिखते हैं। आप यहाँ से भी देख सकते हो, लाइक ये बेसिक ट्यूटोरियल था जो मैंने आपको बताया, बेसिक पाइथन क्या होती है। अभी आप यहाँ से इफ एल्स कंडीशन देख सकते हो, बाकी मैं समझा दूंगी कि कैसे लिखते हैं। ठीक है, ये तो आप बाद में देख लेना क्लास के बाद, मैं समझा देती हूँ आपको इफ एल्स कैसे लिखते हैं अपन। गाइस ऑल आर गेटिंग ना, सब लोगों को समझ आ रहा है? किसी को कोई भी दिक्कत है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ लेना, बिकॉज टुडे इज योर फर्स्ट क्लास। आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमें कुछ डाउट हो रहा है या हमें समझ नहीं आ रहा मैम हम कैसे करें। यू कैन आस्क, यू आर फ्री। तुम्हारे ऑनवर्ड्स तो हम कंफर्म हो जाएंगे कि आप लोगों को चीजें समझ आ रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके,
ओके, सो अब मैं आपको बताती हूँ कि कंडीशंस हम कैसे लिखते हैं। सबसे पहली चीज आपको ये ध्यान में रखनी है, जैसे हम सी में इफ एल्स लिखते हैं, सी प्लस प्लस में लिखते हैं, जावा में लिखते हैं, तो हम लोग क्या यूज करते हैं, हम लोग कर्ली ब्रेसेस यूज करते हैं। लाइक मैं आपको शो करती हूँ, इफ कोई आप कंडीशन लिखते हो ए ग्रेटर देन बी, और उसके बाद आप क्या करते हो, कर्ली ब्रेसेस, और इसके अंदर कुछ स्टेटमेंट्स होते हैं, राइट। यहाँ पे पाइथन में हमारे पास कर्ली ब्रेसेस नहीं होता, वी डोंट यूज द कर्ली ब्रेसेस, हमें कर्ली ब्रेसेस नहीं यूज करना, ठीक है। तो अब आप लोग सोचो कि कर्ली ब्रेसेस नहीं यूज करना, तो कुछ तो करेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि इस इफ के आगे का कोड यहाँ पे क्लोज हो रहा है, यानी कि इफ के अंदर जो जो स्टेटमेंट है वो कहाँ तक चलेंगे, राइट। सो हम लोग यहाँ पे क्या यूज करते हैं, यहाँ पे एक नई टर्म इंट्रोड्यूस होती है, उसको बोलते हैं इंडेंटेशन। इंडेंटेशन, ओके। सो हम लोग यहाँ पे एक नई टर्म यूज करेंगे, इंडेंटेशन। इंडेंटेशन मीन्स आप इफ ब्लॉक के अंदर जो भी कोड होगा उसको राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे। जैसे मैं लिख के दिखाती हूँ आपको, लाइक आप दो वेरिएबल लो, यूजर्स इनपुट लेते हैं, इज इक्वल टू इंट, इंटीजर टाइप के इनपुट, enter the value of a. Similarly, I'm just taking another user input, int input, enter the value of b, right? Now what I will do, if a greater than b, जब मुझे ऐसे लगे कि इफ के बाद जो कंडीशन लिखनी थी वो कंप्लीट हो गई, कंडीशन कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे एक नया टर्म आता है कॉलन, जो दो डॉट्स हैं। सो बेसिकली इफ ए ग्रेटर देन बी कॉलन, हम लोग कॉलन यूज करते हैं। कॉलन का मतलब ये होता है कि आप इफ के साथ जो कंडीशन लिख रहे थे वो कंप्लीट लिख लिया आपने, कॉलन के बाद आप क्या करेंगे, आप एंटर देंगे। एंटर देंगे तो आपको मेरा कर्सर दिख रहा होगा, मेरा कर्सर थोड़ा सा राइट साइड में, आप लोग देखेंगे तो कितने स्पेस, एक दो, दो स्पेस छोड़ के राइट साइड में आया बाय डिफॉल्ट। लाइक मैं यहाँ पे हूँ, अब मैंने एंटर दिया तो ये हमको दिख रहा है कि इसने दो स्पेस छोड़ दिए, ठीक है। अब हम इफ के अंदर जितने भी स्टेटमेंट लिखेंगे वो सारे स्टेटमेंट दो स्पेस छोड़ने के बाद होंगे, ठीक है। तो आप क्या करोगे, लाइक यहाँ पे मैं लिख रही हूँ प्रिंट इन द डबल कोट्स a is greater than b, ओके। एंड एक और स्टेटमेंट में लिखना चाहती हूँ, प्रिंट वैल्यू ऑफ a कॉमा a। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये दोनों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगे, और भी कोई स्टेटमेंट मुझे इफ के अंदर लिखने हैं तो मैं इसी लेवल पे लिखूंगी। अब आप लोगों को दिख रहा होगा जैसे इस इफ से हम इतना आगे हैं, जो भी स्टेटमेंट है इस इफ से इतना आगे, मींस हम लोग राइट शिफ्ट हो रहे हैं, राइट साइड में हम एक इक्वल स्पेस पे जाके कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। इस इक्वल स्पेस को ही हम बोलते हैं, जो ये कोड लिखने का मेथड है इसी को बोलते हैं इंडेंटेशन। मींस आपने जो पहला स्टेटमेंट लिखा है, इस स्टेटमेंट में अगर इससे पहले आपने दो स्पेस दिए हैं तो अगले स्टेटमेंट को लिखने से पहले भी आपको दो स्पेस ही देने हैं। जैसे ये जुपिटर नोटबुक है तो ये ऑटोमेटिकली टेक केयर करता है, पाइचार्म भी ऑटोमेटिकली टेक केयर करता है। ये चीजें मतलब अपने आप हो जाती हैं उनमें, उन एडिटर्स में, बट जैसे आप सिंपल आइडियली यूज करते हैं वहां पे आपको इंडेंटेशन मैनुअली देना पड़ता है, ओके। सो बेसिकली आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि सारे स्टेटमेंट एक लेवल पे। अब इसका मतलब है मैं अभी तक इफ के अंदर हूँ, जैसे ही मैं एंटर करूंगी और एक बैक स्पेस दबा दूंगी मैं, इसका मतलब मैं इफ के लेवल पे आ गई, मींस इफ के अंदर जो भी कोड था वो कंप्लीट हो गया। अब मैं एक एल्स लिख रही हूँ, और एल्स में कभी भी कंडीशन नहीं देते हैं, कॉलन, एल्स कॉलन मींस एल्स के बाद जो भी लिखना है वो अब लिखेंगे, एंटर। यही चीज मुझे इसी तरह से मुझे एल्स में लिखना है,
एल्स ब्लॉक के अंदर भी हम कर्ली ब्रेसेस यूज करते थे, वहां पे, यहाँ पे हम लोग कर्ली ब्रेसेस यूज नहीं कर रहे। बी इज ग्रेटर, ओके, एंड प्रिंट बी, ठीक है। और अब आपको क्या करना है, आप अभी तक एल्स के अंदर हो, एल्स के बाहर आना है। लाइक एक स्टेटमेंट है, मुझे ऐसे ही कुछ भी लिखना है, प्रिंट एंड ऑफ प्रोग्राम, ओके। अब आप लोग देखेंगे कि मैं ए यूजर से इनपुट ले रही हूँ, बी यूजर से इनपुट ले रही हूँ। अगर मेरा ए बी से बड़ा है तो मैं इस इफ के अंदर ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, ए ग्रेटर देन बी, देन आई विल गो इनसाइड दिस इफ कंडीशन एंड ये दोनों स्टेटमेंट होंगे वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे, ठीक है। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो मेरा एल्स में जो भी कोड है वो एग्जीक्यूट होगा। एल्स में क्या है, ये दो स्टेटमेंट्स हैं, तो ये दोनों एग्जीक्यूट हो जाएंगे, ओके। एंड ये एल्स के एग्जीक्यूट होने के बाद लूप का कर्सर आएगा यहाँ पे, तो मेरा क्या एग्जीक्यूट होगा, प्रिंट एंड ऑफ द प्रोग्राम। सो इसके बाद जो भी आप लिखोगे वो सारे में कर्सर आपका यहीं से चलेगा, आपको जितने स्टेटमेंट लिखने हैं इफ एल्स के बाहर वो आपके इक्वल साइड में स्टार्ट होंगे, ठीक है। तो ये आपको समझ आ जाना चाहिए इफ एल्स कैसे लिखते हैं। इफ एल्स में, इफ में आप कंडीशन देते हो, कंडीशन खत्म होने के बाद आप कॉलन लिखते हो, कॉलन के बाद आप इक्वल स्पेस देके स्टेटमेंट्स लिखते हो। जब तक आप किसी कंडीशन में इक्वल स्पेस दे रहे हो तब तक वो उस कंडीशन के अंदर का कोड है, ठीक है। अब मैं इसको रन कराती हूँ and it is asking me to enter value of a, like value of a मैंने 50 दी, value of b मैंने दे दी 70। अब क्या होगा, if कंडीशन तो ट्रू हुई नहीं, यानी a ग्रेटर देन b नहीं हुआ तो इसके अंदर नहीं जाएगा। तो else में देखा, else में a ग्रेटर देन b नहीं हुआ तो else हमेशा एग्जीक्यूट होगा। else में दो स्टेटमेंट थे, b इज ग्रेटर एंड b की जो वैल्यू है वो, और उसके बाद क्या आएगा, output end of program, got it guys। मैं आपसे कंफर्मेशन इसलिए मांगती हूँ ताकि आप लोग अटेंटिव रहें, आपको कोई भी डाउट हो आप उसी टाइम पूछ लें, आपको ऐसे नहीं लगे कि हम लोग बोर हो रहे हैं या हम लोगों को बीच में ध्यान नहीं दिया, आपका ध्यान डाइवर्ट हो गया। इसलिए मैं इन बिटवीन बीच बीच में आपको थोड़ा एक्टिव करके पूछती रहती हूँ ताकि आप बताते रहो कि मैम हमें समझ आ, ओके। ठीक है, अब ये तो हुआ कि आपको केवल इफ और एल्स ही लिखना है, सिंपल कंडीशन ही देनी है। एक से ज्यादा कंडीशन इफ में देनी हो तो आप एंड यूज कर सकते हैं, ए एंड करके, या एंड का मतलब दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए और कर सकते हो यूज, ठीक है ना। अब इसके अलावा जैसे हमारे पास एल्स इफ होता है एक, कि हम क्या करते हैं, इफ की कंडीशन ट्रू हुई, फेल हो गई तो हम एक और कंडीशन चेक करेंगे, वो एलिफ में हम डाल देते हैं। यहाँ पे एल्स इफ की जगह यहाँ पे क्या होता है हमारे पास, एलिफ, ELIF। मेरी थोड़ी सी पेंटिंग अच्छी नहीं है, आई एम नॉट गुड एट पेंटिंग्स। सो बेसिकली ये हमारा एलिफ है, ELIF। सो हम लोग कैसे लिखते हैं, लाइक गाइज अपने यहाँ पे आर्टिकल में आ जाओ, आर्टिकल में थोड़ा थ्योरी पार्ट आपको समझ आएगा। I got a question from Surendra. A is equal to int, B is equal to this. If A greater than B, print is this. And this program is not asking for input. Okay, Surendra, I'll execute this. ऐसा कैसे पॉसिबल है, आपने तो बिल्कुल मेरे जैसा ही तो प्रोग्राम लिखा है। लाइक मैं एग्जीक्यूट कर रही हूँ, ठीक है। सुरेंद्र ने हमें एक प्रोग्राम भेजा है, दिस, मैंने सुरेंद्र का भेजा हुआ प्रोग्राम कॉपी कर लिया है,
मैं इसको रन कर रही हूँ, सुरेंद्र बोल रहे हैं कि यूजर इनपुट नहीं पूछ रहा है। देखो रन करने के बाद ये ऐसा आएगा, एंटर द वैल्यू ऑफ ए, बॉक्स बन गया होगा। आप कौन सा एडिटर यूज कर रहे हैं? यहाँ पे जुपिटर नोटबुक में आपको बॉक्स बना हुआ दिखेगा, उस बॉक्स में क्लिक करके वैल्यूज डालनी है। एक वैल्यू आप डालेंगे, फिर से एक और बॉक्स बन जाएगा, उसके अंदर दूसरी वैल्यू डालेंगे। जैसे आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ना, यहाँ पे इसने मुझसे पूछी एक वैल्यू, तो जैसे मैंने डाली 23, फिर एक और वैल्यू पूछी, ये मैंने डाली 2 3, और फिर ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया। एक बार अभी ट्राई करो आप सुरेंद्र। ओके, गॉट इट, he's got it. थैंक यू। अब मैं आपको ये बता रही थी कि मल्टीपल कंडीशंस मुझे लिखनी है, तो मैं क्या करूंगी। सो डिसीजन मेकिंग इन पाइथन, आप ये सेकंड वाला आर्टिकल है अपना वो पढ़ेंगे। इंडेंटेशन मैंने आपको समझा दिया, इफ एल्स कंडीशंस मैंने आपको बता दी। क्या होता है, ट्रू होता है तो बॉडी के अंदर जाता है, नहीं तो बाहर रहता है। अब एक से ज्यादा कंडीशंस करनी हो आपको, एलिफ होता है, इफ एलिफ एल्स। तो क्या होगा, इफ के अंदर आप कोई कंडीशन लिखेंगे, एक्सप्रेशन 1, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो इसके अंदर के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगे, और इसके नीचे का कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा यहाँ तक। अगर पहली एक्सप्रेशन 1 है वो फॉल्स हो गया, तो एक्सप्रेशन 2 चेक करेंगे, एलिफ के अंदर जो भी कंडीशन है, एक्सप्रेशन 2। और एक्सप्रेशन 2 अगर मेरा ट्रू हो गया है, तो एक्सप्रेशन 2 के अंदर के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगे, और नीचे के एलिफ एल्स कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर मेरा एक्सप्रेशन 2 भी फॉल्स है, तो एक्सप्रेशन 3 चेक करेंगे हम, और 3 अगर ट्रू हो गया तो इसके स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगे, एल्स कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर ये मेरा फॉल्स हो गया एक्सप्रेशन 3, तो जो भी एल्स में लिखा है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात? जैसे मेरे को मल्टीपल कंडीशन चेक करनी हो, एलिफ तब मैं यूज करती हूँ, इफ की कंडीशन ट्रू है तो इफ के अंदर का हो जाएगा, इफ की कंडीशन फॉल्स है तो एलिफ के अंदर का हो जाएगा, और अगर एलिफ की कंडीशन फॉल्स है तो लास्ट में जो भी आपने एल्स लिखा होता है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। हम एक एग्जांपल लेते हैं अभी, सिंपल सा। ये तो एक इफ एल्स का है, इफ एलिफ एल्स का एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने जो अभी यूजर से इनपुट लिया, हम वही चीजें ले रहे हैं, ठीक है। हम दो वेरिएबल यूजर से इनपुट ले रहे हैं, बस अब की बार हम एक और कंडीशन ऐड कर रहे हैं। लाइक हम लोग इसी में भी कर सकते हैं, जैसे हमारा ये प्रोग्राम है, मैं इसी में कर दूं, कोई दिक्कत नहीं आई थिंक। यहाँ पे एलिफ ए इक्वल्स बी कॉलन एंटर, और यहाँ मैंने लिख दिया प्रिंट ए इक्वल्स बी। ठीक है, तो क्या होगा, जब मैं सबसे पहले मैं ए की वैल्यू दी, ए की वैल्यू डाल दी मैंने 10, बी की वैल्यू डाल दी मैंने 10। क्या होगा, सबसे पहले ये चेक करेगा ए ग्रेटर देन बी, ये ट्रू है नहीं है, तो इसको छोड़ देगा। इसके नीचे वाली कंडीशन चेक करेगा, ए इक्वल्स टू बी ट्रू है, यस, तो ये इसके अंदर जो भी लिखा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, और एल्स एग्जीक्यूट नहीं होगा। और फिर सीधा इस कंडीशन से बाहर जो प्रिंट एंड ऑफ द प्रोग्राम लिखा है, अगर मैं ऐसा आउटपुट डालती, लाइक ए मैंने डाल दिया 12, बी मैंने डाल दिया 4 5, अब क्या हो रहा है मेरा, सबसे पहले देखेंगे ए ग्रेटर देन बी है क्या, नहीं है, ए 12 है, ए इक्वल्स टू बी है, नहीं है, तो जो एल्स में है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। गॉट इट? मल्टीपल कंडीशंस जब चेक करने हो, एलिफ कितने भी हो सकते हैं, एक इफ लिखा, फिर एलिफ लिखा, फिर एक और एलिफ लिखा, आपकी मर्जी, आप कितने भी एलिफ लिख सकते हो। ओके, एंड एक इफ के अंदर मैं एक और इफ लिख सकती हूँ, सिंपल। जैसे मैंने चेक किया, ए ग्रेटर देन, दो वेरिएबल की जगह मैं एक और वेरिएबल ले लेती हूँ इसमें। ठीक है, मैं इसी में एडिट कर रही हूँ, कोई दिक्कत हो तो आप लोग बोल देना प्लीज।
वैसे ही बहुत ही सिंपल चीजें हैं, बट स्टिल मैं थोड़ा टाइम दे रही हूँ इनको। c इज इक्वल टू दिस। अब आप c की वैल्यू भी यूजर से इनपुट ले रहे हो, 3 वेरिएबल ले रहे हो। अब मैं क्या कर रही हूँ, a ग्रेटर देन b, और तो मैं a ग्रेटर देन b तो टाइप प्रिंट कर दूंगी, और मैं यहाँ पे एक और कंडीशन लगा चेक करूंगी, इफ a ग्रेटर देन c। तो इसके अंदर मैं क्या लिखूंगी, प्रिंट इज ग्रेटेस्ट इज ग्रेटेस्ट। अब यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं a, लाइक मैंने a डाला 40, b डाला 30, c डाला 10। इसमें क्या हुआ, a ग्रेटर देन b है, ट्रू है। प्रिंट a इज ग्रेटर देन b। इफ a ग्रेटर देन c है तो क्या होगा, a c से बड़ा है, a c से बड़ा है हमारा, तो a इज ग्रेटेस्ट एंड वैल्यू ऑफ a। फिर इस if से बाहर आ गया, वैल्यू ऑफ a, यानी कि हमारा क्या हुआ, ये ऊपर वाला if ही एग्जीक्यूट हो गया, elif else की जरूरत नहीं पड़ी। तो इसको बोलते हैं if के अंदर फिर से if है ये। if, इस if के अंदर कितने स्टेटमेंट है, 1 2 3, और फिर इस अंदर वाले if के अंदर एक स्टेटमेंट है प्रिंट। तो आपने फिर से if लिखा तो फिर से एक इंडेंटेशन हो गया। गॉट इट। मल्टीपल कंडीशन कैसे लिखते हैं, if elif और नेस्टेड if। यहां तक सबको समझ आ गया, मैं लूप पे मूव कर दूं। लाइक आप लोग अब कंडीशंस लिख सकते हैं, यू आर कंफर्टेबल टू राइट ए कंडीशन, और बाकी थ्योरी पार्ट आप यहाँ से इसके बाद पढ़ लेना एक बार, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट आपको बताती हूँ लूप कैसे लिखते हैं पाइथन में। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है गाइस, लूप कैसे लिखते हैं। हैश लूप इन पाइथन। ठीक है, अब लूप बताने से पहले लूप क्या क्या होते हैं, अलग अलग टाइप के लूप होते हैं, ये थ्योरी तो आप यहाँ से देख लेना, मैं बेसिकली आपको लिखना सिखाती हूँ। पाइथन लूप्स, देखो फोर लूप होता है, वाइल लूप होता है, लूप के अंदर लूप होता है, नेस्टेड लूप होता है। बेसिकली लूप का मतलब क्या होता है, एक पर्टिकुलर कोड होता है, उसको आपको सर्टेन टाइम रन कराना है, लाइक 4 बार 5 बार 6 बार, तो आप लूप यूज करते हैं, राइट। सो मैं आपको सबसे पहले एक फोर लूप जो जिसका सिंटैक्स पाइथन में थोड़ा डिफरेंट होता है वो बताती हूँ कि फोर लूप कैसे लिखते हैं पाइथन में। ठीक है, फोर लूप लिखने के लिए आपको सबसे पहले एक फंक्शन की नॉलेज होनी चाहिए, वो फंक्शन होता है रेंज। रेंज फंक्शन, ओके। रेंज फंक्शन बेसिकली क्या होता है गाइस, रेंज में हम लोग क्या करते हैं, हम ऐसे लिखते हैं RANGE, आन इनसाइड द ब्रैकेट मैंने एक वैल्यू दी। रेंज में आप 3 पैरामीटर मैक्सिमम दे सकते हैं, मिनिमम पैरामीटर आपको एक देना होता है। तो मैं तीन पैरामीटर्स लिख रही हूँ इसमें, रेंज 5, ठीक है, फिर मैं लिख रही हूँ रेंज 1,5, फिर मैं लिख रही हूँ रेंज 1,5,2, ठीक है। अब इन तीनों का आउटपुट क्या होगा, अलग अलग चीजें होंगी। जैसे आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये मेरा रेंज फंक्शन है, RANGE। इसका डिस्क्रिप्शन भी पाइथन की साइट पे आपको मिल जाएगा। बेसिकली ये क्या करेगा, रेंज में 3 चीजें आती हैं, एक स्टार्ट पॉइंट, एक कंडीशन
कि आपको कोई कंडीशन देनी है, लाइक रेंज 5 कॉमा, आपको देखना है कि कहाँ से कहाँ तक चलना है। मैक्सिमम आप 3 पैरामीटर दे सकते हैं। 3 पैरामीटर मैं यहाँ लिख देती हूँ क्या क्या हम दे सकते हैं। पहला पैरामीटर होता है आपका स्टार्ट पैरामीटर, दूसरा पैरामीटर आपका होता है स्टॉप पैरामीटर, तीसरा पैरामीटर आपका होता है स्टेप पैरामीटर। ठीक है, अब इसमें क्या है, जैसे अगर सपोज आपने एक ही पैरामीटर दिया है, ओनली वन, ठीक है, ओनली वन के केस में आप क्या करोगे, बाय डिफॉल्ट आपका स्टार्ट जो होगा वो 0 से होगा, और जो ओनली पैरामीटर है वो है स्टॉप पैरामीटर। ठीक है, कॉमा स्टेप आपका डिफॉल्ट होगा 1। ठीक है, जब आप एक पैरामीटर देते हैं तो इन तीनों की वैल्यू जैसे होती है कि आपका स्टार्ट पैरामीटर 0 से स्टार्ट हो जाता है, आपका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट 1 से होता है, इंक्रीमेंट होता है हमेशा, और स्टॉप आपने जो वैल्यू लिखी है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, सपोज आपने लिखा है रेंज 5, रेंज 5 मीन्स it will generate the values started from 0 to 1 3 0 1 2 3 4, लाइक 0 से स्टार्ट होगा, एक एक का डिफरेंस है, 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, और ये जो एक नंबर है वो उसकी लिमिट है, यानी कि लास्ट वैल्यू है, इससे पहले तक आपको लूप चलाना है। तो रेंज 5 मीन्स it will generate the sequence of 5 values started from 0, like 0 1 2 3 4, right? सिंपली अगर मैं यहाँ पे 2 पैरामीटर्स देती हूँ तो 2 पैरामीटर्स के केस में क्या होगा, ओनली 2, ओनली 2 के केस में क्या होगा आपका, पहला पैरामीटर क्या होगा, स्टार्ट, यहाँ पे स्टार्ट क्या होगा 1, दूसरा पैरामीटर क्या होगा आपका यहाँ पे स्टॉप, स्टॉप इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है 5। ठीक है, एंड डिफॉल्ट आपका इंक्रीमेंट होगा 1 का, इज इक्वल टू 1। इट मीन्स क्या क्या वैल्यूज होंगे इसमें, 1 सॉरी 1 2 3 4, 5 खुद इंक्लूड नहीं होता, जो लिमिट होती है वो खुद इंक्लूड नहीं होता, लिमिट से एक कम तक होता है। और अगर हमने 3 पैरामीटर दिए हैं तो उसमें वैल्यूज हमारे पास जनरेट होंगी, स्टार्ट हमारा पहला पैरामीटर है तो इस केस में स्टार्ट है 1, इस केस में स्टॉप है हमारा 5, एंड इस केस में स्टेप हमारा है 2। ओके, सो बेसिकली ये मेरा फोर लूप होता है, मतलब फोर लूप में ये एक फंक्शन है जो मेरे बहुत काम आएगा। अभी मैं लूप लिख के दिखा रही हूँ, इस पूरे को मैं कमेंट ही कर रही हूँ। ठीक है, अब मैं एक लूप लिखूंगी, फोर लूप लिख रहे हैं, फोर लूप लिखने के लिए फोर लिखना पड़ता है सबसे पहले, फिर एक वेरिएबल का नाम कुछ भी दे सकते हैं आप, सपोज मैंने दिया आई, फिर इन लिखना होता है, ये इनबिल्ट ऑपरेटर होता है। ठीक है, इन इन फिर आपको देना होता है रेंज फंक्शन, रेंज 5। ओके, एंड इसमें भी कर्ली ब्रेसेस नहीं होते, जैसे आप सी में पढ़ते तो सी में कर्ली ब्रेसेस होते थे, यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे भी आपको सिंपली, एक सेकेंड, यहाँ पे भी आपको सिंपली कॉलन एंड देन द इंडेंटेशन यूज करना पड़ेगा, लाइक दिस, एंड प्रिंट आई, सपोज मैं आई प्रिंट कर रही हूँ, एंड एक और मैं इसके लूप के अंदर जितने भी लिखूंगे वो सारे एक लेवल पे होंगे, वैल्यू ऑफ आई, मैंने लिख दिया वैल्यू ऑफ आई, कुछ भी लिख सकते हैं। फिर मैं इस लूप से बाहर निकलना चाहती हूँ तो मैंने इस लूप से बाहर निकल के लिख दिया प्रिंट एंड। ठीक है, अब आप इसको रन करो, क्या आउटपुट आएगा, देखो सबसे पहले आई की वैल्यू क्या है 0, वैल्यू ऑफ आई, फिर आई की वैल्यू क्या हो गई 1 2 3 4, 4 होते लूप खत्म हो गया। गॉट इट, तो ये सिंपल फॉर लूप हुआ। आई की जगह आप कोई भी नाम दे सकते हो वेरिएबल को, इन इसका इनबिल्ट कीवर्ड है, एंड रेंज आपका एक फंक्शन है जिसमें अलग अलग पैरामीटर्स हम पास कर सकते हैं।
ओके, अब मैं क्या करती हूँ, अब मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ। यहीं पे मैं चेंज कर देती हूँ, आप लोग देख ही रहे हैं, ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। 1,5 कर दिया मैंने। अब आप लोग देखेंगे पिछले वाले में 5 था, तो स्टार्ट कहाँ से था, 0 से। अब पहला पैरामीटर स्टार्ट है, ये पैरामीटर स्टॉप एंड बाय डिफॉल्ट इंक्रीमेंट है 1 का। ठीक है, 1,5 का मतलब है 1 2 3 4। फिर मैं यहाँ पे एक और पैरामीटर दे देती हूँ इंक्रीमेंट, जैसे मैंने दे दिया 2। तो क्या होगा, पहला एलिमेंट होगा 1, फिर 2 का डिफरेंस छोड़ेंगे, मतलब 2 नहीं होगा, 3 होगा, फिर 3 4 नहीं होगा, 5 होगा, लेकिन 5 तक खुद नहीं जाएंगे, 5 के एक कम तक जाना था हमें, तो इसमें आउटपुट आएगा 1 एंड 3। ओके, गॉट इट। एक पैरामीटर लिया तो, 2 पैरामीटर लिए तो, 3 पैरामीटर लिए तो। अब एक क्वेश्चन मेरे पास आ रहा है, मैम नेगेटिव डिक्रीमेंट कैसे करेंगे। ओके, डिक्रीमेंट बताती हूँ शुभम। बेसिकली डिक्रीमेंट के लिए आपको क्या करना है, 4i इन रेंज बड़ी वैल्यू से स्टार्ट करना है, लाइक 10 से स्टार्ट कर रहे हैं, कॉमा कहाँ तक जाएंगे, 1 तक जाएंगे, तो 9 टाइम्स ये लूप चलेगा, कॉमा कितने से डिक्रीमेंट करेंगे, -1 से। आपको डिक्रीमेंट करना है तो आपको माइनस वैल्यू देनी पड़ेगी। सो हम 10 से स्टार्ट कर रहे हैं, 1 तक जाएंगे एंड -1 आपको वैल्यू देनी पड़ेगी। ओके, सो इसके बाद आपको कॉलन एंड देन प्रिंट आई। अब आप लोग देख रहे हैं इसका आंसर क्या आया। 10 से स्टार्ट हुआ, 10 9 8 7 6 5 4 3 2। 1 खुद नहीं होता, लिमिट एक कम तक जाती है, तो ये बड़ी वैल्यू से स्टार्ट हुआ, इसलिए -1 डिक्रीमेंट के लिए। जब भी आप डिक्रीमेंट करना होता है, आपको उल्टा लूप चलाना होता है, तो माइनस करना होगा। गॉट इट। ये सिंपल फॉर लूप कैसे लिखते हैं वो बताया मैंने। अब आप लोग मुझे बताओ, किसी को कोई डाउट है क्या, फॉर लूप कैसे लिखते हैं। आप लोग लिख सकते हो फॉर लूप। आर यू कंफर्टेबल और आर यू गेटिंग द थिंग्स? जस्ट सेंड मी a quick confirmation. Concept clear. Okay. Okay, thank you so much. So basically अब हम क्या करेंगे, हम लोगों ने लूप लिखना सीख लिया। अब 3 स्टेटमेंट होते हैं लूप में, एक होता है ब्रेक, एक होता है कंटिन्यू, और एक होता है पास। ब्रेक और कंटिन्यू हर लैंग्वेज में होते हैं, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा है, उसको बोलते हैं पास। ठीक है, लाइक तीन, एक तरह से आप लूप स्टेटमेंट्स बोल सकते हैं। मैं बताती हूँ आपको कैसे होते हैं लूप स्टेटमेंट्स। लाइक ये एक मैंने लूप लिखा, कॉपी कर लेती हूँ मैं इसको, सॉरी क्या हो गया। अब मेरे को ब्रेक, कंटिन्यू एंड पास देखना। ठीक है, अब कंटिन्यू के आगे ये नहीं लिखा। अब मुझे क्या करना है, मुझे सिंपली जो भी मैं लूप लिख रही हूँ, उस लूप में एक पर्टिकुलर कंडीशन पे मुझे उसको टर्मिनेट कराना है। जैसे मेरी आई की वैल्यू, जैसे ही मेरी आई की वैल्यू 4 हो जाए, मुझे उस लूप से बाहर जाना है। कोई भी कंडीशन दे सकते हो, आपकी आई की वैल्यू 2 से डिविजिबल हो जाए या कुछ भी हो जाए, एक पर्टिकुलर कंडीशन पे आपको लूप से बाहर निकलना है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख रही हूँ, प्रिंट आई हो रहा है, इफ एक कंडीशन लिखनी पड़ेगी, इफ आई इक्वल्स 4, उस टाइम में ब्रेक कर दो। ठीक है, एल्स
एक सिंपल प्रिंट ही लिख रही हूँ मैं, प्रिंट आई, और यहाँ पे आई के प्लेस पे मैं लिख लेती हूँ, सॉरी आई, क्या है इसको, एंड यहाँ पे मैं डबल कोट्स में लिख देती हूँ इनसाइड लूप, और जैसे इस लूप से बाहर निकल रहे हैं तो एक बैक स्लैश, ये पूरा लूप के अंदर है, ठीक है। अब एक बैक स्लैश, प्रिंट आउटसाइड, ठीक है। अब क्या होगा, अब आप इसका आउटपुट देखो, देखो अच्छे से ध्यान दो इस पे, ये थोड़ा अच्छी चीज है। लाइक मैंने ब्रेक स्टेटमेंट का यूज किया है। अगर मेरी आई की वैल्यू क्या होगी, 10 9 8 7 6 5 4, जैसे ही मेरी 6 तक होगी मेरा ये आई इनसाइड लूप, और फिर ये प्रिंट आई होता जाएगा। जैसे ही आई की वैल्यू 4 होगी, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। इस कंडीशन के अंदर लिखा ब्रेक, ब्रेक का मतलब होता है सीधा कर्सर लूप के स्टार्टिंग में चला जाता है, लूप को खत्म कर देता है, सीधा कर्सर लूप के से बाहर आ जाता है। तो यहाँ पे आउटसाइड ऑफ द लूप लिखा आएगा, जैसे आई इक्वल्स टू 4 होगा, उसके बाद लूप नहीं चलेगा। आई इक्वल, देखो 5 तक था, आई इक्वल्स टू 4 हुआ तो आउटसाइड ऑफ द लूप हम आ गए। गॉट इट। ब्रेक का मतलब ये होता है एक पर्टिकुलर कंडीशन पे आप उस करंट लूप से बाहर आ जाओ, ओके। इसी तरह से एक स्टेटमेंट होता है कंटिन्यू। कंटिन्यू में हम क्या करते हैं, हमें कुछ कंडीशन ऐसी देनी है कि अगर ऐसी कंडीशन होगी तो हम कंटिन्यू मीन्स हम उस कंटिन्यू के नीचे जितने भी स्टेटमेंट लूप में लिखे हैं उनको एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, सीधा हमारा कर्सर स्टार्टिंग में ले जाएंगे, पहले स्टेटमेंट से वापस एग्जीक्यूट करना चालू कर देंगे। जैसे मैं यहाँ पे ब्रेक की जगह, सपोज इसी में मैं ब्रेक की जगह आई इक्वल्स टू, इन प्लेस ऑफ ब्रेक मैं कंटिन्यू लिख लेती हूँ, ठीक है। अब कंटिन्यू में आप लोग देखेंगे कि सबसे पहले वैल्यू थी 10 9 8 7 5 6 5 तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक इनसाइड लूप आ गया। जैसे ही आई की वैल्यू 4 हुई, कंटिन्यू, कंटिन्यू मीन्स इसके नीचे जो स्टेटमेंट है ये प्रिंट लूप का, कंटिन्यू के बाद लूप के अंदर जितने भी स्टेटमेंट है वो प्रिंट नहीं होंगे, वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे। कंटिन्यू का मतलब है कर्सर वापस इस लूप में चला गया, मीन्स प्रिंट 4 नहीं होएगा, बाकी सारे हो जाएंगे। 5 इनसाइड लूप तो आ गया था पर वैल्यू 4 नहीं आई। गॉट इट। कंटिन्यू और ब्रेक क्लियर है क्या, आप लोग मुझे बताओगे प्लीज, बिकॉज ये दोनों काम आते हैं आपके लूप में। किसी को डाउट हो तो बोलो, आगे बढ़ू मैं। अब एक होता है पास, पास कुछ नहीं होता गाइस, पास का मतलब है मुझे एक पर्टिकुलर कंडीशन में कुछ नहीं करना। लाइक जैसे मेरा नंबर जब इवन है तो मुझे प्रिंट नहीं कराना, ओड हो तो मुझे प्रिंट कराना है, तो मैं क्या करूंगी, लाइक हम एक एग्जांपल यहाँ से ले लेते हैं, ये सारे हम कर लेंगे, तुम लोग कर लेना ये सारे। वाइल लूप मैं बता दूंगी, वाइल ज्यादा सिंपल सा ही होता है, वाइल में ज्यादा कुछ नहीं करते। पास देख रही थी मैं ना, लाइक एक नंबर है डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 0 तो पास कर दिया, एल्स प्रिंट कर दिया, जैसे कि आई
टू इक्वल्स 0 तो पास कर दिया, एल्स प्रिंट कर दिया। तो क्या होगा, इवन ओड नंबर्स प्रिंट होंगे इसमें। देखो इसमें केवल ओड नंबर्स 9 7 5 3, इवन नंबर नहीं प्रिंट होंगे। यानी कि जब आपको कोई कंडीशन, किसी कंडीशन पे कुछ भी नहीं लिखना है तो आप वहां पे पास लिख सकते हो। जैसे जब भी अपन इफ लिखते हैं तो कॉलन लगा के उसके आगे कोई स्टेटमेंट लिखना होता है ना, आप खाली नहीं छोड़ सकते। इफ कंडीशन को या किसी लूप को, किसी भी चीज को आप खाली नहीं छोड़ सकते। आप किसी चीज को खाली छोड़ना चाहते हैं तो उसकी जगह आप पास यूज कर सकते हैं। ओके, गॉट इट। अब मैं आपको एक वाइल लूप और बता देती हूँ। वाइल लूप बिल्कुल वैसा ही है, उसके बाद हम बाइंड अप करते हैं। वाइल लूप बिल्कुल वैसा ही है जैसा बाकी लैंग्वेज में होता है। लाइक हमने यहाँ पे एक वाइल लूप का ब्रेक, कंटिन्यू, ये सारे वाइल में यूज करके दिखाएं। सिंपल सा वाइल का एग्जांपल लेते हैं। दिस वन, दिस इज वेरी सिंपल, मुझे लिखना नहीं पड़ेगा, मेरा टाइम सेव हो जाए। कि आपको पहले एक वेरिएबल को इनिशियलाइज कराना है, फिर वाइल के अंदर कंडीशन देनी है, और फिर वाइल लूप की डेफिनेशन के अंदर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करना है। लाइक हमने एक नंबर एक यूजर से इनपुट लिया, i इक्वल्स टू 0 दे दिया, i लेस देन इक्वल टू n है, कॉलन, इसके बाद जो स्टेटमेंट लिखने हैं ये दोनों स्टेटमेंट लिख दिए और बाहर आ गए, लूप से बाहर आके प्रिंट एस करा। तो ये बाकी लैंग्वेज के जैसे ही है, बस इंडेंटेशन का ध्यान रखना है। जैसे इसने मुझसे एक नंबर इनपुट मांगा है, इनपुट दिया मैंने 10, ओके, n की वैल्यू है 10, i लेस देन इक्वल टू n, i आपका क्या, 0, 0 से 20 से छोटा है, i इज इक्वल टू i प्लस 1, s इज इक्वल टू i प्लस n, और लास्ट में प्रिंट s करना है। ओके, समझ आ गया वाइल लूप। वाइल लूप में कुछ नहीं है, लूप के पहले आपको ये स्टार्ट कंडीशन देनी है, अंदर एक आपको कंडीशन देनी है कहाँ से कहाँ तक लूप चलाएंगे, और फिर कॉलन करके इसकी जो डेफिनेशन आती है उसमें आपको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट देना है। लाइक i इक्वल टू 0, i लेस देन इक्वल टू n, i प्लस 1। बाकी वाइल में कोई डिफरेंस नहीं होता है। Okay guys, so this is all about how to write the loops in the Python, how to write if else conditions in the Python. अब आपको मैं इस पे 10-15 क्वेश्चंस दूंगी, आप सिंपल पैटर्न्स ट्राई करेंगे, सिंपल जैसे फैक्टोरियल निकालना है, किसी नंबर की टेबल प्रिंट करना है, और इस तरह से मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस दूंगी। तो उन क्वेश्चंस को आपको आज, आपको थोड़ी देर बाद मेल आ जाएगा, और आप सबको वो क्वेश्चंस ट्राई करने आफ्टर द क्लास। ओके, एंड अब आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, कोई डाउट है तो बोलो। और आपको सेटअप इंस्टॉलेशन भी करना है, सारी चीजें करनी है। जिसके पास सेटअप इंस्टॉलेशन नहीं है वो सेटअप इंस्टॉलेशन करेंगे। ओके, गाइस मेरे को बताएंगे आप में से किस किस को बेसिक नॉलेज है पाइथन का, या केवल वो लोग लिखें जिन्होंने कभी पाइथन पे कुछ भी नहीं किया हो, बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। ओके, तन्वी डोंट नो एनीथिंग, तन्वी इज लर्निंग फ्रॉम द स्क्रैच। और बाकी लोगों का क्या स्टेटस है? वृतिका बेसिक क्लियर है मैम, ओके। दुष्यंत, तौशिक, निशांत, शुभम, आप लोग? ओके, मोस्ट ऑफ द पीपल्स आर राइटिंग बेसिक्स आता है। ओके गुड, दैट इज द वेरी गुड। और ये आपके लिए रिवीजन हो गया, मैंने आपको लूप और कंडीशन बता दिया है। अब आप इस क्लास के बाद ये सारी चीजें एक बार से इसकी प्रैक्टिस करना, लाइक पैटर्न्स, और जो क्वेश्चंस मैं दे रही हूँ वो सारे क्वेश्चंस बनाना, ठीक है? तो आपको चीजें समझ आने लग जाएंगी। फिर हम कल करेंगे डेटा टाइप्स करेंगे, लिस्ट, स्ट्रिंग,
कैसे होते हैं उन पे वो करेंगे, उसके बाद हम धीरे धीरे मूव ऑन करें। ओके Okay guys, so I think this is the enough for today. Or if you have any question related to this course, related to GoEdu Hub, related to AI, machine learning, Python, कोई भी question है तो आप लोग पूछ सकते हैं. Okay? And one more thing, आप अपने और भी कोई आपके friends हैं तो वो भी join करना चाहें तो कल से भी join कर सकते हैं. Like कुछ लोग अभी भी join कर रहे हैं. सो अगर आप अपने बाकी फ्रेंड्स को जानते हो जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया, आप उनसे भी बात कर सकते हो, वो ज्वाइन कर सकते हैं इस बैच को कल से. उनकी एक एक्स्ट्रा क्लास अलग से हो जाती है. ओके सो आई थिंक दिस इज इनफ फॉर टुडे. थैंक यू सो मच गाइस and like I'm just waiting for your questions if you have any question, otherwise I'll close the session for the today. And आप सबको क्लास के बाद सारी चीजें मतलब ये रिवीजन करना पूरा. Maypal is getting error. Ma'am, what does that meaning? Error exit with status 1 कहाँ पर आ रही है? आपने कुछ ऐसी कोड लिखा है जिसमें आपका एरर आया है. आप एक बार वो कोड दिखाएंगे, कोड के रिस्पेक्ट while installing the kiwi. It means it is not installed completely. जब जो भी आपने सेटअप किया है उसमें कोई दिक्कत है, कंप्लीट सारी चीजें नहीं हुई है आपकी. आप एक बार लाइक आप पैकेज इंस्टॉल कर रहे हैं ना, तो आप एक बार उसको हटा के दोबारा करो. किसमें एनाकोंडा में कर रहे हैं क्या आप? ओके पाई चाम में कर रहे हैं. एक बार आप दोबारा ट्राई करो, शायद हो जाएगा. क्योंकि ये आप या तो अलग से कीवी इंस्टॉल कर रहे होंगे या पैकेज जो ऑब्जेक्ट में जाके आप प्लस ऐड करके आप नया पैकेज ऐड कर रहे हैं वहां पे देख लीजिए कि कीवी आपको मिल जाएगा. फिर भी अगर दिक्कत आती है तो आप मेरे को स्क्रीनशॉट भेज देना एक बार, तो मैं चेक कर दूंगी. ओके 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 थैंक यू सो मच गाइस. और ये 3 आर्टिकल्स पढ़ने हैं आपको वेबसाइट से, और एक मैं असाइनमेंट दूंगी वो करना है. ठीक है. ओके थैंक यू सो मच. बाय बाय.